Thanks for joining in. It was an insightful and enjoyable session. Thank you, sir. Even I got a lot to learn from you this session. It was kind of a revalidation or reinforcement of my strategy, my new strategy that, okay, you have also been asking students to do the same thing, but I have learned over a period of time. So it took a lot of time to learn these things, which I think the students are learning firsthand from you, which is a very good thing. So thank you Sure, once sure, again. sure, Nikhil. Sure. Say, for example, there was a question on songs from prison. Songs from prison, किसने लिखा है? And the correct answer was Mahatma Gandhi. Many people mark Sarojini Naidu in the exam hall because it is difficult that अगर हमने नहीं पढ़ रखा है, it is difficult that we would imagine in the examination hall कि the correct answer would be Mahatma Gandhi. What is our duty in keeping with Nikhil? जो निखिल ने बताया, prioritize करो content based on your PYQs. Our duty is महात्मा गांधी से जुड़े हुए जो भी काउंटर इंट्यूटिव फैक्ट्स हैं उनको नोट डाउन करो. मॉस्किटो कंट्रोल पर क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं. लेमन ग्रास पर क्वेश्चन आया था और किस चीज पर आ सकता है. वोल्बाकिया हमने प्रिपेयर किया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था वोल्बाकिया पर एग्जाम हॉल में. देर आर अ फ्यू स्टूडेंट फ्रॉम द लास्ट बैच एज वेल जिन्होंने वहां पर सही मार्क किया था एग्जामिनेशन हॉल में. अदरवाइज गाइस दैट क्वेश्चन वाज प्रीटी डिफिकल्ट अगर हमने नहीं पढ़ा है. सर प्रीलिम्स में रिस्क के बिना तो क्लियर नहीं कर सकते आप. मतलब किसी को भी ऐसे 20-30 क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा पता नहीं होते. ऐसा कोई ऐसे टॉपर आके अगर आपको बोल दे कि मुझे 70 क्वेश्चन पता थे 100 में से, तो 60 क्वेश्चन पता थे 100 में से, तो वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव दैट. मतलब Yeah. इतना नॉलेज होना बहुत मुश्किल है. अगर अनलेस एंड अनटिल आप रिस्क नहीं लेते हो, आप अप्लाई नहीं करते हो नॉलेज या कुछ मतलब लॉजिक नहीं लगाते हो, तो वो 30 के बाद वाला जो गैप है ना, 30 क्वेश्चन तक हो सकता है आपको अच्छे से आते हो, मतलब कि हाँ यही आंसर होगा. बाकी तो 20-30 क्वेश्चन जो आप ऊपर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करते हो, 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करते हो, दैट इज बेस्ड ऑन टेकिंग रिस्क. I can see here some of the students are my existing students who are part of Dominate Prelims 2024, and many others are new students. Guys, even those who are new, many among you have already watched my videos, my free videos on YouTube, where I keep emphasizing on PYQ based preparation, how PYQs are our best friends, how PYQ analysis, structured PYQ analysis, PYQ anchoring is a very powerful way of increasing your marks, boosting your marks, and maximizing your chances of clearing prelims. But that is one perspective. That is a mentor's perspective. For the sake of those students who are joining new and those who will be giving their first attempt, एक बहुत ही सिंपलिस्टिक एग्जांपल देता हूं. द्रोणाचार्य और अर्जुन. When you ask something to Dronacharya, he'll give his perspective from a mentor's point of view. द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को तैयार किया है. If you ask him about the art of war and other learning that he has imparted, he'll tell you each and everything from his perspective. But if you ask the same thing to Arjun, Arjun will say or he'll share his experiences based on how he have performed, based on the learning that Dronacharya had taught him. So these are two perspectives. So that's why we have a ranker here. मेरी बातें, मेरी learnings, मेरी classes तो आप attend करते ही हो, be it part of Dominate Prelims program or be it free lectures on YouTube. But today, apart from the mentor's perspective, you'll also be getting a ranker's perspective as to how PYQs are very important, something that you already know, but how exactly are they important and how exactly do we make use of PYQs in the real exam. Also, Nikhil will be speaking in detail about how do we use PYQs to understand the trends, and in the real examination, how do we use those learnings from PYQs to be able to solve those questions about which we have limited idea, or also in some cases, even having zero idea, how do we solve those questions correctly based on PYQ trends and PYQ analysis. So Nikhil Sharma is he has been allotted IRMS through the UPSC Civil Services Examination 2022. And one important thing that you should be knowing about Nikhil is that he has cleared the exam and he has continuously prepared for the exam while being on the job, while being on a full-time job. So that is yet another perspective that he'll be giving for the working janta over here. How do you prepare not just prelims but for CSC in general while you are on a full-time job? And apart from this, Nikhil has also done graduation in computer science and engineering from IIT Tirupati, just to add a point here. And he was working as a senior engineer at TCS
He was also doing his internship in Japan. Then he cleared his examination in the third attempt. Just to add one point, he cleared his prelims in the first attempt, but in the second attempt, he had to taste failure in prelims. But in third attempt, he recouped. He not only cleared prelims, but made it to the final list. So, Nikhil, over to you. Enlighten us with respect to your perspective on PYQ based preparation for prelims. Thank you, Zishan sir. So, talking about PYQs, I would say that PYQs have helped me a lot in prelims because I did not have a lot of time. As sir mentioned, I was working, so I did not have a lot of time to attempt many mocks. So because many people suggest that we should attempt like 50 mocks or 100 mocks, but I never had that luxury to do it. So my preparation was mainly based on the PYQs. I tried attempting the PYQs maybe once, maybe twice. So I used PYQs a lot in my preparation. And one of my mentors, I would say, while I was preparing, my mentor had only told me that try to solve as many PYQs as possible, and that is going to help you in prelims. Like if you have last 20 days or 30 days left for prelims, then don't do anything else, just solve the PYQs. So, but why do we like talk about solving the PYQs? Why are PYQs so important? तो लाइक व्हाट सर यूज्ड टू टेल मी इन वेरी सिंपल लैंग्वेज की पीवाईक्यू से ना तुम्हें समझ में आएगा कि क्वेश्चन से आंसर कैसे निकालना. So it you will understand how the answer is hidden in the question itself in many cases. और वो चीज हमें यूपीएससी के क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है ना उससे पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि हाँ क्वेश्चन अगर इस वे में इस लैंग्वेज में रिटन है तो उससे हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं. और अगर आप मल्टीपल पीवाईक्यू सॉल्व करोगे मल्टीपल राउंड्स में इफ यू ट्राई टू सॉल्व पीवाईक्यूज यू विल अंडरस्टैंड यू ट्राई टू कैच द लैंग्वेज. मतलब एक बार करने से भी विल सी कि हाँ ठीक है सही हुआ गलत हुआ हमें पता चल गया. लेकिन दोबारा उसको जब आंसर पता होने के बाद हम देखते हैं लाइक व्हेन वी सी इट अगेन when after looking at the answer we realize that okay where we were wrong or how could we have solved this question the same question in a simpler way. So our approach like this session is mainly on role of PYQs in UPSC prelims, and I have broken it down into 4 subsections. So we'll see how PYQs help us in understanding the language that UPSC has, the language of the questions, and then based on that understanding we can prioritize. We can prioritize what to study or what are the aspects that we have to look at. And once we have prioritized, we can prepare a strategy for the examination. Because another thing that like when you solve PYQs, you get some time to prepare a strategy that वो 2 घंटे जो आपको मिलेंगे like the 2 hours that you have in the examination, how do you use those 2 hours? So you have to prepare a strategy on that. And moreover, it also gives you confidence कि हाँ आपने इतने questions solve किए हैं PYQs के, you have solved these many questions or these many papers these many times. So you at least know these many questions. So like ऐसे 500 या ऐसे 1000 क्वेश्चन तो आपको पता है जो लास्ट 10 years में आ चुके हैं. तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस एक बेस प्रोवाइड करता है इन द रियल एग्जामिनेशन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रीलिम्स. So that confidence aspect is added by the PYQs again. So going with the understanding part, understanding the language. So initially I was little apprehensive. Sir ने बोला था कि like we follow a concept of show don't tell. So you should solve the problems in the webinar and show how you solve them, how you think about this, about these problems. So I said that sir ऐसा तो कोई भी 10 क्वेश्चन उठा लेगा और बोलेगा कि सर ये ऐसे बनेगा, ये तो इतना आसान क्वेश्चन था, ये तो इतना आसान क्वेश्चन था, इसको तो कोई भी बना लेता, ये तो लॉजिकल था, ये तो ऐसे था. But to be very honest, in real examination, it is very difficult to think that way, to think very logical. But yes, if you are able to stabilize, if you're staying confident in the examination, there is a way that you can focus on what is there in the paper and look at just the information that is present in the question to solve that question, maybe without even having a lot of knowledge about that question. तो उसी तरह से आई हैव जस्ट पिक्ड अप अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स लाइक हम लोग सिलेबस को कैसे डिवाइड करेंगे फॉर प्रीलिम्स. तो वी हैव बेसिकली डिवाइडेड इट इनटू इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया. सो आई फॉलोड दिस फॉर्मूला GHEPN. सो आई डिवाइडेड इनटू ज्योग्राफी, देन हिस्ट्री, देन पॉलिटी, देन इकोनॉमी एंड देन एनवायरनमेंट. ऐसे 5 एस्पेक्ट से. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव करंट अफेयर्स. एनवायरनमेंट के बाद करंट अफेयर्स आ गया, स्कीम्स आ गई, जो भी सोसाइटी का पार्ट आ गया. सो दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स दैट वी लुक एट. तो अब जो अंडरस्टैंडिंग है ना, मैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में दिखाऊंगा कि कैसे वो अंडरस्टैंडिंग या वो क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ के वी कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन. So going ahead, I'll understanding the language in this section. We'll look at a few questions. All of these questions are from 2022 prelims. So ऐसा नहीं है कि मैंने एक क्वेश्चन के लिए एक सब्जेक्ट के लिए इस साल का उठा लिया, दूसरे सब्जेक्ट के लिए किसी और साल का उठा लिया. I have picked all these questions from one single year, that is 2022. So we'll look at different subjects and one question from each, and we'll see how I could have solved. You could have solved this with just a little bit of knowledge and थोड़ा common sense. जैसे इकोनॉमी का एक क्वेश्चन हमने ले लिया, तो इसमें क्या बोल रहा है
कि मतलब इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी हम लोग को कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब पहला ही स्टेटमेंट पढ़ना है इसमें, क्या है कि इफ इन्फ्लेशन इज टू हाई, अगर इन्फ्लेशन टू हाई है तो आरबीआई क्या करेगा, इट विल बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, अब ये सिंपल स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट ये हमने पढ़ा, सिर्फ पहला स्टेटमेंट पढ़ के मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर इन्फ्लेशन टू हाई होगा तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करेगा। अब आरबीआई कुछ बाय करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करता है, तो क्या करना, उसको पैसे देने पड़ेंगे, इट विल इंजेक्ट मनी, इकोनॉमी में मनी जाएगा। इफ आरबीआई ट्राइज टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मनी विल बी एडेड टू द इकोनॉमी। अब इन्फ्लेशन हाई है तो कोई पैसे क्यों डालेगा और इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन को तो कम करना हमारा एम है ना। तो वहां पर जैसे ही हम पढ़ रहे हैं कि आरबीआई विल स्टार्ट बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, हम पहले समझ जाते हैं कि ये पहला स्टेटमेंट तो मतलब लॉजिकली नहीं है कि अगर इन्फ्लेशन हाई है और हम कुछ बाय कर रहे हैं मतलब इकोनॉमीज में, तो हम और पैसे डाल रहे हैं इकोनॉमी में, तो वो मुझे नहीं करना ना। आरबीआई आरबीआई टू रेगुलेट इन्फ्लेशन, उसका काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना विद इन द बैंडविड्थ। अब हम 4 ± 2% में अगर इन्फ्लेशन रखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आरबीआई इस टाइम पर बाय नहीं करेगा और हम बोलेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत है। और ये 2022 का क्वेश्चन है। In 2022, we know that paper had some questions which had like the new options were just introduced in that year. So वो लगता है कि वो डिफिकल्ट पेपर है, बट पिछले साल मैंने भी प्रीलिम्स दिया था। तो ये पहला ही मतलब पढ़ करके हमें समझ में आ रहा है कि पहला स्टेटमेंट तो गलत है बिल्कुल। तो बस मैंने पहला स्टेटमेंट गलत बोलते मुझे आंसर मिल गया, मैं बाकी दो स्टेटमेंट्स पढ़ूंगा भी नहीं। तो एक तो ये मेरा टाइम भी सेव कर रहा है कि अगर मुझे इतना इतना क्लियरली कुछ दिख गया यहाँ पर जिसमें कि लॉजिकल फैलेसी है कि बिल्कुल लॉजिकली तो सही नहीं है, ये काम आरबीआई नहीं कर सकता है, तो मैं बाकी दो स्टेटमेंट्स मान लूंगा कि हाँ ठीक है सही है, और वो आप पढ़ोगे तो भी पता चलेगा, कॉन्सेप्ट भी लगाओगे तो सही निकलेगा। बट आई जस्ट एलिमिनेट द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड मार्क बी एज माई आंसर। सो ऐसे मैंने एक सिंपल इकोनॉमी का क्वेश्चन लिया, सिर्फ लॉजिक के बेसिस पे आपको बताया कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप प्रोवाइडेड आप काम रहो, आप कॉन्फिडेंट रहो। अब वही आप थोड़ा डरे हुए रहोगे, इफ यू आर लिटिल बिट लाइक लिटिल अंडर कॉन्फिडेंट, या आपने लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं किया यूपीएससी के, तो यू विल सी कि अरे यूएसए और यूरोपियन यूनियन में इंटरेस्ट रेट्स फॉल कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, उस समय इंड्यूस क्या करेगा आरबीआई को, डॉलर बाय करेगा कि नहीं करेगा। तो वो रियल एग्जाम में आपको ये सब फेयर्स आएंगे। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आपने इतना क्लैरिटी आ गई, तो आप अंडरस्टैंड कर लेंगे लैंग्वेज को और फिर ये चीज सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है पॉलिटी से मैंने जो पिक किया है। अब ये भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स इसमें दे दिए हैं। अब इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो भी हमें आंसर पता चलेगा कि एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑफ, सॉरी एक सेकंड, मेरे को ना पूरा देख नहीं रहा। So as per the rules of procedure and conduct of business rules in Lok Sabha, the election duty of speaker shall be held on such date as fixed। स्पीकर में फिक्स तो ठीक है, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में कुछ लिखा हुआ हो सकता है। पहला स्टेटमेंट हम मान रहे हैं कि हाँ ठीक है, समथिंग कुड हैव बीन देयर, तो दिस कुड बी करेक्ट। ठीक है, कोई बात नहीं। Second statement, there's a mandatory provision that the election of a candidate as the deputy speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party। So एक मैंडेटरी प्रोविजन दिया हुआ है कि इलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट एज डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्यूटी स्पीकर के लिए एक मैंडेटरी प्रोविजन दिया है। ठीक है, क्या कि वो आइदर प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी से होना चाहिए या रूलिंग पार्टी से होना चाहिए। तो अब ये थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी पता नहीं चल रहा है, तो मैंडेटरी प्रोविजन साफ साफ इतना स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट जैसा लग रहा है कि मैंडेटरी प्रोविजन। ठीक है, और मैंडेटरी प्रोविजन क्या है कि डिप्यूटी स्पीकर का जो होना चाहिए वो ऑपोजिशन पार्टी से होना चाहिए, रूलिंग पार्टी से। तो बाकी पार्टीज ने क्या गलत किया है, मतलब बाकी पार्टी के साथ हम डिस्क्रिमिनेट क्यों करेंगे, उनकी क्या गलती है भाई, वो रूलिंग पार्टी नहीं है, ऑपोजिशन पार्टी नहीं है, तो उनका डिप्यूटी स्पीकर नहीं हो सकता। ऐसा कुछ मैंडेटरी प्रोविजन बनाना तो डिस्क्रिमिनेटरी हो गया ना अपने आप में। तो बस इस बेसिस पे, इस लॉजिक से हम बोल सकते हैं कि ये सेकंड स्टेटमेंट तो सही नहीं लगा, सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि ये मैंडेटरी प्रोविजन बोल रहे हैं और भी डिप्यूटी स्पीकर के लिए, और वो भी दो पार्टीज को ही बस दे रहे हैं कि अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी को रहेगा और किसी से नहीं रहेगा, तो दैट इज डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर। या तो तुम किसी से मतलब या तो सिर्फ अपोजिशन पार्टी से लो, सिर्फ या तो सिर्फ रूलिंग पार्टी से लो। अगर तुम सिर्फ दो ही पार्टीज को दे रहे हो और बाकी सब पार्टीज को इग्नोर कर रहे हो, तो वो थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी पे, और मैंडेटरी प्रोविजन वाला चीज जो है वो भी एक्सट्रीम दिखा रहा है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट को भी मैं लॉजिकली मान लूंगा कि गलत है। सो दिस इज हाउ आई लुक एट दिस क्वेश्चन। और सेकंड स्टेटमेंट जैसे एलिमिनेट करेंगे तो दो दो ऑप्शन चले जाते हैं, एक 1 और 3 बचता है, एक 3 और 4 बचता है। और 1 तो हमने देख लिया था कि सही है, कि हाँ ठीक है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में ऐसा कुछ लिखा हो सकता है, कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं, नॉर्मल स्टेटमेंट है। 1 हमने सही मान लिया। तो अगेन इस क्वेश्चन में भी मैं बाकी चीजें ज्यादा नहीं पढ़ के भी मैं सीधा बोल सकता हूँ कि हाँ आई विल गो विद 1 और 3 ओनली। इतना क्लैरिटी मुझे आ जाएगी जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। अब उसके बाद भी हम लोग एक और मतलब इसका भी अंडरस्टैंड कर, लैंग्वेज की जो मैं बात बोल रहा हूँ, एक और ऑप्शन देख के भी पढ़ सकते हैं कि द वेल एस्टैब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस। ये भी आप देखो कितना, मतलब वो बोलते हैं ना कि ज्यादा अगर बढ़ा चढ़ा के बोलने की कोशिश कर दिया, कोई भी चीज बोलने की कोशिश की जा रही है, तो देर इज समथिंग समथिंग रॉन्ग इन दिस। तो 3 तो हमें पता चल गया कि सही है, 1 और 3 और 3 और 4 से, तो 3 तो मैंने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया।
फिर भी डबली श्योर होने के लिए मैंने फोर्थ पढ़ना शुरू किया, तो फोर्थ में इट इज सेइंग कि well established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker that the motion may be moved। ठीक है, तो well established parliamentary practice वो भी डिप्यूटी स्पीकर के लिए, तो इतना इतना तो खिचड़ी नहीं पकाया जाएगा कभी भी, ठीक है। तो वो देख के लग रहा है कि हाँ इतना लंबा ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है तो मतलब ठीक है, मतलब साउंड्स की नहीं, ठीक है, ये तो ऑप्शन गलत ही लग रहा है मेरे को। आई अगेन गो बाय 1 and 3। सो ये लैंग्वेज आपको कैसे pick करोगे, मुझे ये चीज अभी कैसे पता चल रही है, बिकॉज मैंने लास्ट 2011 से लेके 2012 से लेके 2020 का पेपर करके गया था, 2021 का पेपर करके गया था। और हर साल के पेपर में आप ये लैंग्वेज देख पाओगे, ये लैंग्वेज को पिक कर पाओगे। तो ये लैंग्वेज अगेन मैं पिक करके बोल रहा कि अरे इतना ऐसा स्टेटमेंट है इस लैंग्वेज में लिख रहा है, तो पता चल रहा है कि नहीं ये लैंग्वेज ही बता रहा है कि ये स्टेटमेंट सही नहीं हो रहा। इस लैंग्वेज से पता चल रहा है कि हाँ ये सही हो सकता है, और ये भी मैंडेटरी प्रोविजन से गलत मैंने मान लिया। तो आई हैव द आंसर विद मी, वो भी एकदम 100% श्योरिटी के साथ कि हाँ यही होगा, सी भी नहीं होगा, बाकी दोनों भी नहीं होंगे। ठीक है, वैसे ही एक और क्वेश्चन पिक करते हैं ज्योग्राफी का। तो अब ज्योग्राफी में क्या एक्सट्रीम या ऐसे कैसे निकल जाएगा, ये तो बहुत फैक्चुअल लग रहा था। जब वहां पे एग्जाम में देखे मैं भी पहली बार देखा कि अरे भाई मोनाजाइट, कहीं तो पढ़ा था कि हाँ कुछ होता है, मोनाजाइट सैंड के बारे में पढ़ते हैं केरला के पास, लेकिन अब चार चार स्टेटमेंट है, अब रेयर अर्थ मेटल है कि नहीं पता नहीं, थोरियम वाला थोड़ा थोड़ा पता था कि हो सकता है शायद हो। ठीक है, बट अब इसी में स्टेटमेंट मेरे को क्या दे दिया कि अकर्स नेचुरली इन द एंटायर कोस्टल सैंड्स इन इंडिया। अब एंटायर कोस्टल सैंड जैसे ही बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि कहीं भी कोस्ट, किसी भी कोस्ट पे जाएंगे मोनाजाइट सैंड उठाएंगे, सैंड उठाएंगे तो मोनाजाइट मिल जाएगा। तो अब ये जैसे ये स्टेटमेंट देखा मैंने, समझ में आ रहा है ना कि ये बिल्कुल ही एक्सट्रीम तरह की बात हो गई कि इंटायर इंडियन कोस्टल सैंड तो भाई पूरे इंडिया में ही मिल रहा है हर जगह। ऐसी चीज तो बहुत मुश्किल है कि पूरे इंडिया में ही कहीं मिल जाए मुझे। ठीक है, तो एक तो अगर वो रेयर अर्थ मेटल है, ठीक है, वो थोरियम भी कंटेन कर रहा है, तो एंटायर कोस्टल सैंड में मिल रहा है, तो वो स्टेटमेंट साफ साफ लग रहा है कि हाँ एंटायर कोस्टल नहीं, कहीं स्पेसिफिकली बोल देता है कि भाई वेस्टर्न कोस्ट में मिल रहा है या ईस्टर्न कोस्ट में मिल रहा है, तो कंफ्यूजन होता है या कुछ वैसा होता है। तो एंटायर लिख दिया है। जैसे ही आई सी दैट दिस इज सेइंग दैट इट इज एन एंटायर कोस्टल सैंड, मैं थर्ड स्टेटमेंट को यहाँ पर एलिमिनेट करूंगा। अगेन आई हैव द आंसर विद मी कि थर्ड को ही एलिमिनेट करने से मेरे को दिख रहा है कि आंसर 1 2 and 4 है, तो बाकी तीनों सही है, बस ये थर्ड वाले ने। तो मैं तो क्वेश्चन ही क्या कह रहा है, क्वेश्चन बता रहे हैं कि भाई मैं मतलब देख लो मुझे, पढ़ लो एक बार, इफ यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज आई विल बी सॉल्व। तो क्वेश्चन में ही आंसर, जो मेरे को मेरे मेंटर ने समझाया था कि जस्ट लुक एट द क्वेश्चन एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। तो क्वेश्चन में ही आंसर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, तुमको खोज के निकालना है बस। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जिसमें इसी के अंदर मुझे आंसर देखिए कि भाई एंटायर कोस्टल साइंस नहीं, ये तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया कि ऐसे सारे कोस्टल साइंस में मिल जाए। तो वैसा मोनाजाइट इतना रेयर अर्थ मेटल भी है और थोरियम भी कंटेन कर रहा है और सब जगह मिल भी रहा है, तो इतना, ये तो बहुत ही मतलब वो हेवन वाला बात हो गया। तो ये स्टेटमेंट मैं गलत बोलूँ। ठीक है, अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग कौन से सब्जेक्ट कवर कर लिया, इकोनॉमी कवर कर लिया, पॉलिटिक कवर कर लिया, ज्योग्राफी कवर कर लिया, ऐसे ही देखते हैं अगला इन्वायरमेंट का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मतलब ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये लंग्स ऑफ द अर्थ है, कि ये CO2 ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो श्योरली वेटलैंड्स फंक्शन एज किडनीज। ठीक है, मतलब वो ऐसा क्या आ रहा है कि कुछ प्योरीफाई करने का काम करेगा, कुछ क्लीनिंग का ऐसा कुछ रोल करेगा, क्योंकि उसको वेटलैंड को किडनी से कंपेयर कर रहा है। अब मुझे वेटलैंड्स के बारे में ज्यादा नहीं पता है, मुझे इतना पता है कि हाँ किडनी क्या काम करता है मेरी बॉडी में, या किडनी का क्या रोल है। और मतलब रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को लंग्स बोलते हैं, ठीक है, बता रहा है वो। तो अब वैसे ही एक बॉडी में जैसे किडनीज का रोल होता है, वैसे ही वेटलैंड्स का कुछ रोल होना चाहिए एनवायरनमेंट में। अब हम पढ़ते हैं ऑप्शंस की वजह से, ऑप्शंस की बेसिस पे ही हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वाटर साइकिल इन वेटलैंड्स इन्वॉल्व सरफेस रन ऑफ, सबसॉइल परकोलेशन एंड इवेपोरेशन। इससे ऐसा कुछ क्लीनिंग वाला एस्पेक्ट तो बाहर निकल के उभर के नहीं बाहर आ रहा ना। तो ये स्टेटमेंट मैंने मतलब मान लिया कि हाँ ठीक है, इसमें कुछ भी क्लीनिंग वाला एस्पेक्ट नहीं आ रहा, तो ये भी सही नहीं लग रहा ये ऑप्शन मेरे को। अगला है क्या, algae form the nutrient base upon which fish, crustaceans, mollusks, birds, reptiles and mammals thrive। तो अब ये तो खाने वाले की बात कर रहा है, कुछ मतलब फूड की बात कर रहा है या प्रोविजन की बात कर रहा है। अगेन क्लीनिंग वाला रोल इसमें इसमें किडनी जैसा काम कुछ नहीं हो रहा है कि वो कुछ ऐसे खाना प्रोवाइड नहीं कर रहा, ठीक है, किडनी हमें। फिर वेटलैंड्स प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग सेडिमेंटेशन बैलेंस एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन। अब सेडिमेंटेशन का बैलेंस बनाना या सॉइल स्टेबलाइज करना, तो ये अगेन वो बैलेंस या स्टेबलाइजेशन वाला रोल भी किडनी का नहीं होता बहुत ज्यादा। लेकिन अब लास्ट ऑप्शन देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि they absorb heavy metals, excess nutrients। तो अब ये लग रहा है ना कि हाँ कुछ, हाँ ऐसा कुछ किडनी भी बॉडी में करता है कि हाँ कुछ थोड़ा रेगुलेशन और थोड़ा क्लीनिंग हो रहा है एनवायरनमेंट का। तो वहाँ पे जो हैवी मेटल्स अब्सॉर्ब हो रहे हैं, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब हो रहे हैं, वैसा रोल वेटलैंड प्ले कर सकता है। तो अगेन बाय लॉजिक, बाय नोइंग कि किडनीज का क्या रोल है और लंग्स का क्या रोल है बॉडी में, आप एनालॉजी ड्रॉ करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी जो इस बार आए हैं 2023 में, आई थिंक उनका भी कुछ इस तरह से आप लॉजिक निकाल के किसी तरह से उसको बना सकते हैं, by finding the odd one out by looking at what exactly the function is
सो ये बेसिकली एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स पकड़ के किसी तरह से आप लैंग्वेज समझने लगे ना क्वेश्चंस का, तो लैंग्वेज आपको बहुत हेल्प करेगा, अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज वाली चीज जो मैं कह रहा हूँ कंटिन्यूसली। उसके बाद अगला एक हम जैसे साइंस का क्वेश्चन पिक करते हैं। तो साइंस में तो ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि भाई बाय डिफॉल्ट डी मान लेना चाहिए कि सब सारे स्टेटमेंट सही होंगे। लेकिन उसमें भी अगर कुछ आपको एक्सट्रीम मिलता है तो आपको केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि आजकल वो भी हमेशा नहीं चलता। लेकिन जैसे ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन देखते हैं कि बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज, कैन। अब अगेन यहाँ पे क्या स्टेटमेंट बोल रहा है कि कैन समथिंग कैन हैपन। हाँ ठीक है, कैन हो सकता है। कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्विसेज, हाँ ठीक है हो सकता है। कैन एग्जिबिट एंटीबॉडी, तो कैन में कुछ भी हो सकता है। तो ये ऐसा इसमें कुछ भी नहीं बोल रहा है ना कि जो मुझे लगे कि एकदम अलार्मिंग सा कुछ, ऐसा नहीं बोल रहा है कि एकदम कि कैन फॉर्म इन स्पेस या ऐसा कुछ, वैसा कुछ तो नहीं बोल रहा। सिंपल बोल रहा है कि हाँ कैन एग्जिबिट एंटीबॉडी रेजिस्टेंस, ठीक है हो सकता है। फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्विसेज हो सकता है। और अगर कैन स्पेस भी बोलता तो एक बार मैं मानता कि हाँ शायद सही बोल रहा होगा, क्योंकि स्पेस में भी क्या पता कहीं बन जाए, कोई कैन तो कहीं भी हो सकता है ना। सो ऐसा नहीं बोलना नहीं कि विल फॉर्म, डेफिनेटली फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स, मेडिकल इम्प्लांट्स होगा वहां बनेगा ही बनेगा, तब हम सोच सकते हैं कि वहां कहीं इशू है। लेकिन जब बहुत ही जनरल सा स्टेटमेंट हो गया कि हाँ ठीक है कैन फॉर्म ऑन दिस, कैन फॉर्म ऑन दिस, कैन दिस, ठीक है भाई तीनों सब सही लग रहे हैं और मैं डी आंसर मार्क कर दूंगा जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज। और ये चीज मैं सिर्फ इस ईयर का पेपर देख के नहीं बोला, 2022 का, आप पास्ट ईयर पेपर्स भी उठाओगे तो ये लैंग्वेज जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये आप पीवाईक्यू से ही आपको पकड़ में आएगा कि यूपीएससी का जो लैंग्वेज है, कि वो लैंग्वेज से आप कैसे क्वेश्चंस को पकड़ोगे, कैसे इंफॉर्मेशन निकालोगे, वो चीज यहाँ पर क्लियरली दिखाई देगी। फिर एक और सब्जेक्ट पे करते हैं, सोसाइटी या ऐसा कुछ स्कीम्स जैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब इसमें एक क्वेश्चन था उसी ईयर में कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसमें लिखा हुआ है कि प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स मस्ट अडॉप्ट इट अगेन। यहाँ पर मेरे को ये मस्ट दिख गया अगेन, तो मेरा पहले ही ये अलार्म बज गया कि भाई ठीक है, मस्ट अडॉप्ट तो बहुत मुश्किल है, अभी तो नया नया स्कीम निकला था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, तो 2022 की बात है, नई स्कीम आई थी। ऐसे मस्ट अडॉप्टेड तो बिल्कुल नहीं होगा, या तो हो सकता है कि अडॉप्टेड बाय दिस ईयर, अडॉप्टेड, मस्ट अडॉप्ट की अभी अडॉप्ट करना ही है उसको तुरंत, मतलब ऐसा स्टेटमेंट पढ़ के समझ आ रहा है कि हाँ ये यूपीएससी बोल रहा है कि भाई मैं गलत हूँ, ये मतलब मैं ये स्टेटमेंट गलत दिया है मैंने कि इसको काटो। तो वो ये पढ़ के ही मैं इसको बाकी और ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं लगेगी कि हाँ चलो ठीक है बी लग रहा है, और बाकी इतना पढ़ने की भी इतना जरूरत नहीं है, क्योंकि बस एक एक स्टेटमेंट जिसमें मस्ट लिखा हुआ है या इतना इतना स्ट्रांगली उस चीज को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है, तो आई कैन से बाय अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज कि नहीं ये यहाँ पर कुछ गलती है, यहाँ पर कुछ गलत है। ठीक है, तो वही पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स मस्ट अडॉप्टेड वाला देखा मैंने, नहीं गलत है, एंड आई विल मार्क बी एज द आंसर। सो इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं जस्ट टू बी श्योर कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। तो अब वही राइट टू चॉइस आपका जो है वो भी एक तरह की बात होती है ना, कि प्राइवेसी कंसर्न्स भी थी जब डिजिटल मिशन के बारे में बात हो रही थी, कि आपका जो प्राइवेसी है वो हैम्पर होगा अगर आप डिजिटल मतलब अपना सारा रिकॉर्ड्स, हेल्थ रिकॉर्ड शेयर कर देंगे, तो करना चाहते नहीं करना चाहते, एनरोल होना चाहते नहीं चाहते हैं, तो ये पेशेंट्स का भी एक चॉइस हो सकता है वहां पर। तो वो चीज जो है वो इसमें आ नहीं रही, वो सेकंड स्टेटमेंट भी मेरे को इस वजह से गलत लग रहा है। लेकिन मैंने पहला ही पढ़ के बोल दिया था कि हाँ 3 है, तो मैं बोलूंगा कि हाँ सेकंड भी गलत ही लग रहा है, तो आई स्टिल गो विथ 3। तो मैं बस एक श्योर होने के लिए उसको पढ़ रहा हूँ कि हाँ ठीक है ये कर सकते हैं, तो बी आंसर। तो वैसे ही मैंने सिर्फ लैंग्वेज पढ़ी, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड किया कि हाँ पीवाईक्यूज में जो क्वेश्चंस आए थे, पहले भी जो क्वेश्चंस आए थे उसमें जब स्कीम्स के क्वेश्चंस आते थे, तो उसमें ऐसा कुछ डेफिनेट एज लिख देगा कि इस साल से इस साल तक के लिए या इसी कैटेगरी के लिए, तो कुछ वैसा एक्सट्रीम सा या कुछ ऐसा दिख जाएगा कि ये अडॉप्ट होना ही चाहिए। तो वैसा अगर कुछ एक्सट्रीम सा देखे तो समझ में आ जाता है कि नहीं कुछ गलत हो रहा है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत लगा एंड आंसर आ गया। फाइनली एक और देख लेते हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन, लास्ट जो हमारा टॉपिक बच रहा है। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब इससे मैं आऊंगा हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि प्रायोरिटाइजिंग के ऊपर। So if you look at the PYQs, like the previous year questions in UPSC, you will always find one question every year or every alternate year on the Government of India Acts या फिर Charter Acts। तो ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है हमारा कि इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी, आप 2023 में भी इसका एक क्वेश्चन निकाल के देख सकते हो, कहीं ना कहीं होगा। 2021 में भी होगा, 2020 में भी होगा, हर साल हमें पता है कि ये एक एक पार्ट से आ रहा है, और ये एक चैप्टर साफ साफ लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, स्पेक्ट्रम में भी एक चैप्टर में लिखा हुआ है कि हाँ सारे एक्ट के अंदर क्या क्या हुआ था वो सारी चीजें। तो आप दोनों को मर्ज करके एक कंबाइंड चीज कुछ बना सकते हो कि हाँ ठीक है ये इतनी इंफॉर्मेशन है जिसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, और उसको आप प्रीलिम्स के पहले देख सकते हो कि ये पार्ट मुझे ऐसा है कि पता है कि इससे क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। और चलो ठीक है कि एक बार बन गया और हो सकता है कि आपको उस समय नहीं याद रहे, तो देखते हैं इसको हम लोग और कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सिंपली, मतलब ऐसे
क्वेश्चंस आ भी सकते हैं जिसमें मतलब नॉलेज की जरूरत हो, ये एक बार बिना नॉलेज के भी ट्राई कर लेते हैं। लेकिन ये चीज जो ये एस्पेक्ट ऑफ सिलेबस है, ये हमें पता है कि इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं। पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर साल आ रहे हैं, और फिर आप इसको स्पेशली प्रिपेयर करोगे, आप प्रायोरिटाइज करोगे अपने सिलेबस में चीजों को। ठीक है। तो वो वाला एस्पेक्ट भी हम अगले एस्पेक्ट में जब चलेंगे तो कवर करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड into रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। अब इसमें से किसको रिजर्व सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है और किसको ट्रांसफर्ड की तरह। तो अब रिजर्व सब्जेक्ट में कौन कौन आते हैं, ये पूछा जा रहा है। ठीक है। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है। अब अगर हम जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई कल को मेरे को आके वो ब्लेम कर देगा, मैंने ट्रांसफर कर दिया जस्टिस, कल को आके बोल रहा है कि नहीं सर उसी की गलती है, वाइसरॉय की गलती है, किसी की गलती है। तो वो अगर मैं उसको रिजर्व करके अपने पास नहीं रखूंगा तो फिर वो दूसरे के ट्रांसफर हाथ में चला जाएगा ना, तो वो मेरे ऊपर भी बाद में आ सकता है। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो ये आपने देखा होगा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत पहले ही आ गया। उसका पर्पस ही ये था कि हाँ वो लोग थोड़ा अपना डिस्प्यूट आपस में जो थोड़ा बहुत अंदर का चीज, वो चीज लोकली मैनेज करें, अपने आप को खुद ही सेल्फ गवर्न करें। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाली चीज बहुत पहले आ गई थी। और आप बता सकते हो चैट में कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस किसको बोला जाता है हमारे मतलब इसमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो वो आपको पता होना चाहिए, वो भी एक फैक्ट है अगेन। तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन है आप बता सकते हो। और फिर लैंड रेवेन्यू वाली चीज, हाँ रेवेन्यू तो अपने आप अपने पास ही रखना चाहेंगे, पुलिस जैसी चीज भी अपने पास रखना चाहेंगे। तो अगर मुझे इसमें मतलब ऑड वन आउट निकालने की जरूरत पड़ी ना, तो जैसे मैंने पहले बोला कि ऑड वन आउट भी आप देख सकते हो, तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपका ऑड वन आउट है, क्योंकि ये तो मतलब ये तो एम ही है ना कि अगर आप अगर किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बना रहे हो तो वो चाहोगे ना कि हाँ सेल्फ गवर्नमेंट जैसा चीज कुछ आए। अब लेकिन लैंड रेवेन्यू जैसी चीज, पुलिस जैसी इंपॉर्टेंट चीज, जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन जैसी इंपॉर्टेंट चीज किसी को भी ट्रांसफर नहीं करना चाहोगे, आप चाहोगे कि मैं अपने पास रिजर्व करके रखूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो मैं टू को एलिमिनेट करूंगा, वन थ्री एंड फोर जहां पे भी होगा उसको ऑप्शन मार दूंगा। और एक चीज और ये बता रहा है कि इसमें से तीन सही है, ये भी मुझे पता है। तो उससे मतलब क्या पता चल रहा है कि मुझे ऑड वन आउट पूछ ही रहा है कि भाई इसमें ऑड वन आउट क्या है बता दो। कि अगर मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे इतना बता दो कि इन चारों में ऑड क्या है। ठीक है। तुम्हें नहीं पता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्या था, उसमें क्या हुआ था, नहीं पता, तुमने नहीं पढ़ा, पीवाईक्यूज नहीं देखे थे, लेकिन इतना तो पता ही ऑप्शन देख के कि भाई ऑड वन आउट बता दो मेरे को, ऑड वन आउट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम ऑड वन आउट पिक कर लेंगे, और इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसा इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, मुझे ऐसा ऑड वन आउट लग रहा है ये। तो मैं इसमें वन थ्री एंड फोर मार्क कर दूंगा। तो वही चीज जैसे मैं बोल रहा था कि लैंग्वेज अंडरस्टैंड करके, कि ऑप्शंस के तरीके को अंडरस्टैंड करके कि क्या कहना चाह रहा है या क्या पूछना चाह रहा है, वी कैन सॉल्व मेनी क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स। और हर साल ऐसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं। मैंने हर एक टॉपिक को जो मतलब जिसको हम लोग सब सेक्शन में प्रीलिम्स में डिवाइड करते हैं, हर सब सेक्शन को पिक करके उसमें से ऐसा एक क्वेश्चन दिखा दिया आपको, और ये एक साल का पेपर। और मैं इस अप्रोच को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, मैं मानता हूँ कि ये कोई भी निकाल के दिखा सकता है। ये कल को मैं कोई भी बंदा बाहर एग्जाम के बाद आके बोल सकता है कि अरे प्रीलिम्स में तो 100 क्वेश्चन के 80 क्वेश्चन करने लायक थे 100 में से। लेकिन भाई जब प्रीलिम्स में एक्चुअली बैठते हैं, व्हेन वी सिट देयर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू ऑल दोज 80 क्वेश्चंस करेक्ट। इसमें भी गलतियां होंगी, इतना पता होने के बाद भी गलतियां होंगी, बट अगर हम लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें एक एडवांटेज मिलेगा। दैट्स व्हाट आई वांट टू एस्टैब्लिश इन दिस, कि मैं नहीं बोल रहा कि अब मैं एग्जाम में बैठ के ये सारे सही कर देता वहां पर, अगर मुझे तुरंत मिलता तो शायद मैंने नहीं भी किया होगा, एक दो क्वेश्चन में हो सकता है मैंने कहीं ओवर थिंकिंग कर दी, हो सकता है मुझे लग रहा हो कि नहीं गलत है। अभी तो बाहर बैठ के इट्स वेरी इजी टू से एंड वेरी इजी टू कमेंट कि ओके दिस वुड हैव बीन द लॉजिक, दिस इज हाउ यू वुड हैव सॉल्व्ड इट। लेकिन वहां पर एक्चुअल एग्जाम में हर समय वो एग्जैक्ट टाइम पे चीजें स्ट्राइक कर जाना, वो भी एक प्रैक्टिस के साथ आने वाली चीज है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आप जितना लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो मैंने इसीलिए पीवाईक्यूज को बहुत फोकस करके अपने मतलब अपने प्रिपरेशन में बहुत मतलब एम्फोसाइज किया था कि मेरे पास एमसीक्यूज करने का या मॉक्स बनाने का ज्यादा टाइम नहीं है। तो लेट्स जस्ट गो एंड अंडरस्टैंड कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, उसका लैंग्वेज क्या है, एंड हाउ कैन आई यूज दैट टू माय ओन एडवांटेज। ठीक है। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ सेक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रायोरिटाइजेशन के बारे में, कि कैसे हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं चीजों को। तो प्रायोरिटाइज करने के लिए, as I mentioned, right, when you start looking at the PYQs, how, so role of PYQs पे ही हमारा थीम मेन ये है कि रोल ऑफ PYQs क्या है। तो नाउ आई एम टेलिंग यू हाउ PYQs कैन हेल्प यू इन प्रायोरिटाइजिंग। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ इस पार्ट ऑफ द सिलेबस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी के कुछ एस्पेक्ट है जहाँ से क्वेश्चन आए जा रहे हैं, हर बार कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है। तो स्टैटिक्स को फोकस करना है कि करंट अफेयर्स को फोकस करना है, आपका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए। स्टैटिक्स में भी आप किस चीज को अलग से प्रिपेयर करोगे। जैसे मैंने बोला कि मुझे पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने जहां से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है जमा किया भाई। ठीक है। एक दो वेबसाइट देख ली, अपने नोट्स बना लिए, उसके बाद फैक्टर में दिया हुआ है थोड़ा सा वो देख लिया, थोड़ा सा लक्ष्मीकांत से उठा लिया। तो
आई जस्ट प्रिपेयर दैट टॉपिक थॉरली कि मेरे 2 नंबर प्लेन्स में नहीं जा रहे कहीं। ऐसे 2-2 नंबर करके बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, तो वो वाली चीज है कि आपको वो एक एक नंबर 2-2 नंबर वहां पे उठाने हैं, कि आपको वो 2-2 नंबर बहुत ही केयरफुली बचाना भी है, मतलब नेगेटिव मार्किंग से, और उसको अर्न भी करना है। क्योंकि अभी कट ऑफ कम भी होते जा रहा है, बिकॉज डिफिकल्टी पेपर की बढ़ेगी तो कट ऑफ भी कम होगा। आपको जो सही, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स जिसको बोलते हैं, वो आपको कैच करने हैं, और वो आप प्रायोरिटाइज करके पीवाई क्यूज देख के आप कर सकते हो। तो प्रायोरिटाइज करने पर, लाइक मैं बस इसमें इस सेक्शन में यही हाईलाइट करूंगा कि आप प्रायोरिटाइज करने में आपको पीवाई जैसे हेल्प करता है कि आपको पता चलता है कि व्हाट क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम, और व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग every year, and what is repeated theme in the prelims. So one of the themes that I just pointed out was the council acts. You can go back and check 2023's paper, 2022's paper, 2021, 2020, 2019 से 4-5 साल के पेपर खुद जाके देख लो। एक ना एक क्वेश्चन आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या चार्टर एक्ट से मिलेगा ही मिलेगा। मतलब मैंने तो पीवाईक्यूज देख के मुझे ये लगा था कि भाई ये तो आएगा ही आएगा, मतलब और कुछ आए चाहे नहीं आए, ये तो मैं करके जाऊंगा। ठीक है, तो वो प्रायोरिटाइज करने में आपको हेल्प करेगा। और इस बेसिस पे मैंने जब अपना नोट्स बनाया, मैंने कैसे बनाए, तो थोड़ा सा जब भी मैं कुछ नोट्स बनाता था तो आई जस्ट शो दैट पार्ट, जैसे मैंने बोला था कि नोट्स पे दिखा देना। तो अब मैंने नोट्स बनाए कि हाँ ठीक है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के मैंने ऐसे 7-8 पेज के नोट्स बना लिए कि सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स जितने भी मेरे को मिल रहे हैं, स्पेक्ट्रम में मिल रहे हैं, कहीं भी मिल रहे हैं, उठा के एक लिस्ट बना ली कि भाई ठीक है, इतने ही मूवमेंट्स मिले मेरे को, इससे ज्यादा नहीं है। अब उसमें मैंने क्या किया, जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जो जो लगता है कि अरे ये फैक्ट है, जो फिल्म से पूछा जा सकता है, उसको अपने नोट्स में हाईलाइट कर दिया कि हाँ ठीक है, पहले तो नोट्स बनाया, कुछ याद हुआ, बाद में भूल जाएंगे ऑब्वियसली, तो रिवाइज करना जरूरी है। तो अब रिवाइज करने के लिए मैंने क्या करूंगा कि इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया कि हाँ ये पार्ट्स हैं जो कि मतलब फ्रीक्वेंटली इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, या इसे कोई प्रीलिम्स का क्वेश्चन उठा के पूछा जा सकता है। इन्होंने क्या सेटअप किया, कौन थे रिफॉर्मर, कौन थे, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन थी, क्या था। तो उसके बेसिस पे अपने नोट्स बनाए और प्रायोरिटाइज कर लिया कि उस नोट्स में क्या इंपॉर्टेंट है। नोट्स में ये इंपॉर्टेंट है कि हाँ राजा राम मोहन रॉय थे, 1809 में गिफ्ट ऑफ मोनोती ऐसा कुछ उन्होंने लिखा था, मतलब दिस इज एसोसिएटेड विथ हिम, ऑल दीज थिंग्स आर एसोसिएटेड विथ हिम। तो कुछ भी आएगा, उनके व्यूज क्या थे, ऐसा कुछ आएगा तो वो क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। ऐसा ही एक और, इसका नेक्स्ट पेज भी मैं दिखा देता हूँ, कैसे मल्टीपल सारे रिफॉर्मर्स का जो मुझे मिलते थे, उसका मैंने एक लिस्ट बना लिया, एक ही लिस्ट बना ली, और उसको मैं यूज करूंगा कि जितनी बार रिवाइज करना है मुझे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, बस ये लिस्ट रिवाइज कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। वैसे ही इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स, ब्रह्म समाज हुआ, फिर उसके बाद कैसे वो उसका बाइफर्केशन हो गया, 2 पार्ट्स में वो डिवाइड हो गया, ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज में, ऑल इंडिया ब्रह्म समाज में। तो उसके उसके फाउंडर्स कौन थे रिस्पेक्टिवली, तो वो सब चीजें मैंने एक बार एक स्टोरी की तरह बना ली, एक तरह एक जगह नोट्स की तरह स्टोर कर लिया। एंड ऐसे ही आप नोट्स बना सकते हो कि उसमें आपने इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कर ली, और प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से, प्रिलिम्स की तरह सोचते हुए कि फैक्ट्स मुझे पता होने चाहिए, बिकॉज ये सब चीजें फैक्ट्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। जहां आपसे मतलब मेंस की बात आएगी तो वहां तो फिर चलो ठीक है, आपके व्यूज पूछे जाएंगे कि हाँ ठीक है, इसमें क्या होता है, क्या आइडिया था इसके बिहाइंड। तो वो अगेन आपको स्टोरी पता होगी तो पता है, लेकिन फैक्ट्स डालने के लिए जो जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ फैक्ट्स ही काम आते हैं। तो दिस इज बेसिकली अ फैक्ट बेस्ड नोट्स जो मैंने प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर किया कि फैक्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, एंड उसको हाईलाइट कर लिया, सो दैट हेल्प्स मी रिवाइजिंग इट फास्टर। सो दिस वाज हाउ आई प्रायोरिटाइज, आई अंडरस्टूड कि हाँ ये मेरे फोकस एरियाज है, कि हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मेरा एक फोकस एरिया है, इससे मुझे नोट्स बनाने हैं। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में मेरा एक फोकस एरिया है। मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ फोकस एरियाज होंगे, कुछ ऐसे ही पॉलिटी में फोकस एरियाज होंगे, तो उस पर मैंने नोट्स बना लिए। तो बहुत लंबे नोट्स नहीं बनाए, छोटे छोटे नोट्स बना लिए कि हाँ 4 पेज, 5 पेज, 8 पेज ऐसे करके कुछ फोकस एरियाज की फिल्म के एक दिन पहले मुझे पता है कि आई नीड टू रिवाइज दिस, और कुछ करूँ चाहे नहीं करूँ। तो वो काम करने के लिए बस ये चीज यूज कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेटेजाइज करने में कैसे हेल्प कर रहा है, तो इसके बारे में भी मैंने शुरू में बात की थी कि you understand how to use those 2 hours by strategy. By strategy I mean you understand how to use those 2 hours in the examination. तो पहले राउंड में कितने क्वेश्चंस करने हैं, फिर सेकंड राउंड में क्या करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। सो आई विल टेल यू अबाउट हाउ आई डिवाइस माई स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन माई पीवाईक्यूज। तो पहले जब मैं सॉल्व करता था तो जितने क्वेश्चंस में मैं श्योर था, जैसे कि 5 ही क्वेश्चन हो सकते हैं, 10 ही क्वेश्चन हो सकते हैं, 15 ही क्वेश्चन हो सकते हैं, आई यूज टू मार्क देम। सेकंड राउंड में जिसमें मेरे को डाउट होता था कि 50-50 लग रहा है कि अरे यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं, तो आई यूज टू अटेम्प्ट ऑल दोस क्वेश्चंस 50-50 वाले, उसमें एक श्योर शॉर्ट कंक्लूजन लॉजिक लगा के कि हाँ। फिर वो लॉजिकल वाला पार्ट जैसे मैंने आपको दिखाया, वो पार्ट प्ले मतलब रोल प्ले करता है कि इसमें मेरे को थोड़ा स्टैटिक नॉलेज कम है, बट लग रहा है कि हाँ लैंग्वेज से तो यही गलत है या यही सही है, तो ठीक है, उनको उनको कर लिया। तो ऐसे करके मतलब 1-2 राउंड, जितने 3 राउंड आपको जितना टाइम बैलेंस मैनेज कर पाओ उस एग्जाम के बीच में, you can use that and prepare a strategy based on that. But another important part of strategy is, or how to strategize using PYQs is, how do you solve like the MCQs, that the PYQs that I'm talking about. So PYQ जैसे आप सॉल्व करते हो तो आपको लगता है कि एक बार सॉल्व कर लिया,
फिर आपने सॉल्व करने का लगता है कि यार पीवाईक्यू तो कर ही लिया ना, अब तो सब आता ही है ना, पीवाईक्यू तो देख ही लिया ना, अब उसको रिवाइज अगर आप नहीं करोगे ना तो वो आपको उतना हेल्प नहीं करेगा। आप लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको पहले बोला ना कि लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने के लिए आपको वो पीवाईक्यू दूसरी बार तीसरी बार देखना पड़ेगा, जब आपको आंसर पता है उसके बाद, कि इसको इसका लैंग्वेज में कैसे, इसको लैंग्वेज यूज करके कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, आंसर पता है तो सॉल्व करना इज नथिंग, इज नॉट अ बिग डील। लेकिन वहां पर तो न्यू क्वेश्चन आएंगे, वहां तो सरप्राइजेस आएंगे आपके पास, तो उस सरप्राइज को हैंडल करने के लिए लाइक हाउ डू यू सॉल्व दैट क्वेश्चन जस्ट बाय व्हाट इज देयर इन द क्वेश्चन, वो चीज जानने के लिए, आपको स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आप एक नोट बनाओगे बेस्ड ऑन द पीवाईक्यूज, बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस दैट यू सॉल्व। सो एवरी पेपर दैट यू अटेम्प्ट और एवरीथिंग दैट यू सॉल्व, यू जस्ट ट्राई टू प्रिपेयर अ स्ट्रैटेजी और प्रिपेयर, लेट्स से कि ऐसे ऑप्शंस आते हैं तो ये होना चाहिए, या अगर ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास मिसिंग तो ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो स्ट्रैटेजीज में आप ये सब चीजें ऐड करोगे कि आपने उस पेपर को अटेम्प्ट करते हुए क्या क्या गलतियां की, आप उसके बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करोगे। तो whenever you solve MCQs, whenever you attempt papers, you just prepare a strategy around it। और मैंने मतलब यहीं पे वो चीज ऐड करी कि जैसे मैंने करंट अफेयर्स के कुछ MCQs सॉल्व किए, सो हाउ आई जस्ट क्रिएटेड अ सेट ऑफ नोट्स आउट ऑफ इट कि हाँ ठीक है, ये मतलब पहली गलती मैंने ये की थी कि ये ऐसा होना चाहिए था, ये फैक्ट मेरे को नहीं पता था, या ये मेरे को ये चीजें नहीं पता थी कि ऐसा कुछ हो रहा है, या बेसिकली मैंने उसको सॉल्व करते हुए क्या क्या गलतियां कर दी, वो मैंने एक लिस्ट बना ली कि हाँ ये सारी गलतियां मेरे से हुई थी, या ये चीजें मेरे को नहीं पता थी। सो दैट हेल्प मी इन रिवाइजिंग द टेस्ट इजीली। तो मेरा स्ट्रैटेजी यही था कि हाँ कैसे मैं उस टेस्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लूँ ताकि वो क्वेश्चंस दोबारा गलत ना हो जाए। तो ऐसे ही करंट अफेयर्स का किया, ऐसे कोई इकोनॉमिक एमसीक्यू सॉल्व किए तो उसका भी ऐसे नोट्स बना लिया। और आप अगर देखोगे तो नोट्स पे भी मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है कि हाँ लास्ट मोमेंट में तो मेरे को इतना ही पढ़ना है, मैं थोड़ी ना पूरा ये लैंग्वेज पढ़ने जा रहा हूँ कि कमिटी ऑन डीरेगुलेशन, इतना नहीं पढ़ूंगा भाई। ठीक है, डीरेगुलेशन ऑफ जो भी शुगर हुआ था 6C रंगराजन के अंडर में, ठीक है, इतना सा बस ऊपर ऊपर से पढ़ के चल जाऊंगा कि हम विजिलेट इंडेक्स, ठीक है, लेबर ब्यूरो, ठीक है, इतना पता चल गया कि हाँ कौन निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है, ये गलती मैंने की है, दोबारा की तो उस पर स्टार लगा दिया कि अरे बार बार ये गलती कर रहा हूँ। तो वो सब तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी, अपना जो भी पीवाईक्यूज को कैसे यूज करना है या कैसे उसके सोल्यूशंस निकालने, नोट्स बनाने हैं, ये स्ट्रेटेजी उस चीज की। सो दैट्स हाउ यू कैन स्ट्रेटेजाइज योर प्रिपरेशन, स्ट्रेटेजाइज। सिमिलरली जैसे मैंने पास्ट क्वेश्चंस किए, तो ये दिशा की बुक का शायद आई थिंक पास्ट पब्लिकेशन उसका मैंने करा था कि एंशियंट हिस्ट्री क्वेश्चंस किए, 20 क्वेश्चन किए, जो गलतियां हुई नीचे लिख दिए कि हाँ ठीक है ये गलती की थी, ये गलती की थी, ये पता होना चाहिए था, ये नहीं पता था। तो वो सब चीजें मैंने ऐड कर ली हैं। तो ऐसे ही मैंने सब्जेक्ट वाइज या अपना जैसे भी एमसीक्यूज में सॉल्व कर रहा हूँ उसकी नोट्स बनाते चला गया, उस सब्जेक्ट में नोट्स ऐड करते चला गया कि हाँ ये चीजें मुझे पता होनी चाहिए थी, या ये इस वजह से गलत हुआ, वो सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब कमिंग बैक टू द लास्ट पॉइंट दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इज कॉन्फिडेंस। कैसे ये पीवाईक्यूज आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प कर रहे हैं। तो अगर आप पीवाईक्यूज बना रहे हो तो आप ऑलरेडी एक पीवाईक्यू सॉल्व करने पर 100 MCQs कर रहे हो। अगर आपने 10 पीवाईक्यूज बना ली जैसे कि मैं करता था, तो आपने ऑलरेडी कितने 1000 MCQs कर लिए। तो 1000 MCQs से आपको इतना नॉलेज आ गया कि हाँ मुझे और कुछ तो नहीं पता लेकिन मुझे 1000 क्वेश्चन अच्छे से पता है। तो मैं कल प्रीलिम्स देने जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता लेकिन मुझे 1000 क्वेश्चन पता है, इतने अच्छे से पता है कि मैंने उसको 2 बार 3 बार किया है, लाइक आई हैव डन इट मल्टीपल टाइम्स। सो आई नो दीज 1000 क्वेश्चन, दीज 1000 पॉइंट्स ऑफ द सिलेबस वेरी क्लियरली, एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड द लैंग्वेज क्वेश्चन। तो कल को अगर कुछ नया आता है जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, तो लैंग्वेज के थ्रू हेल्प के हेल्प से मैं 10-15 क्वेश्चन उसमें से भी निकाल लूंगा अपने। 8-10 क्वेश्चन तो मैंने दिखाई दिए, ऐसे 10-15 क्वेश्चन भी अगर आप निकाल लेते हो प्रीलिम्स में, दैट्स अ वेरी बिग एडवांटेज। और ये आपको स्टैटिक नॉलेज नहीं पता होने के बाद आप निकाल देते हो, स्टैटिक वाले तो आपको पता ही है ना कुछ क्वेश्चंस, वो तो आप कुछ पढ़ के गए, आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, आप इतनी सारी बुक्स पढ़ रहे हो, तो आपको कुछ क्वेश्चंस तो पता ही है कि हाँ ये सही होने वाले हैं, या ये मुझे इसका आंसर ये होगा। तो जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, दैट्स वेयर दिस पीवाईक्यूज विल हेल्प। एंड मेरा जो कॉन्फिडेंस का बेस होता था प्रीलिम्स में, वो हमेशा से पीवाईक्यू होता था कि अरे भाई ठीक है और कुछ नहीं किया मैंने, कोई बात नहीं, मैंने 1000 क्वेश्चन बनाए, मतलब मेरे पास ज्यादा टाइम रहता नहीं था। तो आई ऑलवेज यूज टू फील कि नहीं कोई बात नहीं, मैंने 1000 क्वेश्चन तो अच्छे से किए हैं ना, मुझे पता है ना लैंग्वेज क्या है। तो दैट इज वाई पीवाईक्यूज हेल्प इन बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस की कोई बात नहीं, मैं लैंग्वेज समझता हूँ, कुछ नहीं आता होगा तो बाकी लोगों को भी ज्यादा नहीं आता होगा, मुझे बस लैंग्वेज समझ के उसका आंसर निकालना है। तो अब आप इसमें जैसे देखोगे कि मैंने एक बार सॉल्व किया, 2 बार सॉल्व किया, तो मेरे मार्क्स जैसे इसमें निकलते हैं, या जो भी मेरा इंप्रूवमेंट्स होता है, तो वो भी मैं हमेशा ट्रैक करता था कि जैसे 2018 का मैंने क्वेश्चन पेपर दिया, 2018 का क्वेश्चन पेपर दिया, सेट ए को सॉल्व किया, देखा 66 करेक्ट हुए, 31 गलत हुए, तो मैं अपने आप को मार्क कर लिया। तो मैंने देखा अच्छा ठीक है चलो 120 नंबर तो आ रहे लगभग, मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ 120 बना होगा इसमें। 120 नंबर मेरे 2018 के पेपर में आए थे, कट ऑफ से बहुत ऊपर था। तो लैंग्वेज यूज करके, और मैंने मतलब ऐसे ही अटेम्प्ट किया, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल इस पेपर को पूरा स्टडी किया पहले फिर अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो नहीं, एक बार अटेम्प्ट किया, फिर मतलब 10 दिन बाद दोबारा जब एक साइकिल कंप्लीट हो गई सारे पेपर्स की, तो दोबारा 2018 पर आया। तब तक दिमाग में जितनी चीजें रिटेन होनी थी हो गई, जितनी फिल्टर आउट हो गई थी हो गई, फिर गलतियां करूंगा।
So I'll know what I'm making, where I'm going wrong, but this will act as a confidence booster for me कि I have इतनी एक्यूरेसी के साथ मैंने किया है, तो ठीक है, आई नाउ अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आई कैन फिगर आउट द आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। वो कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है कि इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू गेट द आंसर आउट ऑफ द क्वेश्चन, तो वो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, हर क्वेश्चन वैसा नहीं होगा लेकिन ऐसे बहुत सारे डेफिनेटली क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वो आपको निकाल के दिखाना है कि हाँ ठीक है ये मैं निकाल लूंगा। सिमिलरली मैंने बोल रहा हूँ ना, मैंने हर साल का पेपर अटेम्प्ट किया था ऑलमोस्ट ऐसे ही, 2020 में भी अटेम्प्ट किया 2012 का पेपर, तो ये ऐसा था कि इसमें 69 सही हुए, 30 गलत हुए, तो अब अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना कि भाई 70 क्वेश्चन तो मैं सही कर रहा हूँ लगभग लगभग 100 में से। तो अगर मेरे को इतना क्लियर है किसी 100 एमसीक्यूज पर, इतनी क्लैरिटी है किसी 100 एमसीक्यूज में, तो आई एम गुड टू गो। मतलब मेरे को समझ में आता है कि चीजें क्या है, चीजें कैसे हो रही है, वो मेरा एक कॉन्फिडेंस का एक बेस होता था कि मेरा बेसिस ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है कि मैं कैसे जा रहा हूँ, मुंह उठा के थोड़ी चला जा रहा हूँ देने, नहीं। मैंने 10 ईयर पेपर्स किए हैं, मैंने वो उसमें इतना मिनिमम स्कोर किया है सब पेपर में, तो मेरे पास वो एक बेस लेवल है, कॉन्फिडेंस है कि हाँ ठीक है मैं जाऊंगा तो मैं बहुत बुरा भी नहीं करूंगा, मुझे थोड़ा समझ में आता है कि लैंग्वेज क्या है, कैसे है, कैसे सॉल्व करना है, तो निकल जाना है मुझे, निकाल मतलब क्लियर कर लेना है बस। वो एक मन में रहता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, डरूंगा नहीं। वो कॉन्फिडेंस का जो बेस है वो आपको पीवाईक्यू से बिल्ड करेगा, मतलब वो आप पीवाईक्यू पे बिल्ड कर सकते हो। I think I have covered all the different aspects of UPSC that based on PYQ that I mentioned: understanding, prioritizing, strategizing, and then confidence. And all of these were based on my preparation of PYQs, and ये मैं मतलब बिल्कुल ये जो मेरी strategy थी PYQs की basis पर वही मैंने आपके साथ शेयर करी है। एंड अगेन आई विल से कि क्वेश्चंस निकाल के दिखा देना 10 क्वेश्चन के, अरे देखो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, कोई भी कर सकता है, हर कोई दिखा सकता है कि अरे 100 के 100 क्वेश्चन आसान थे, वो तो हम ही बेवकूफ थे जो, मतलब बच्चे ही बेवकूफ थे जो उनसे 80 नंबर ही आ रहे हैं, आउट ऑफ 80 जा रहा है। ऐसा नहीं होता वहां पर, वो 80 नंबर लाना भी बहुत मुश्किल, मतलब बहुत मुश्किल होता है, इतनी आसान चीज नहीं होती। लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपको हेल्प करेगा, आपने जो प्रिपरेशन करी है, आपका जो बेस है वो आपको हेल्प करेगा, तो उसी के बेसिस पे आप एग्जाम में आगे बढ़ सकते हो। सो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बाकी जिशान सर कैन टेक ओवर। Fine, Nikhil. Guys, before we move to Q&A session, I've seen many of you have asked a few questions in the chat box. Uh, you can also ask questions by raising hand. We'll allow you to unmute, but for that you'll need to keep your cameras on. And before moving to questions, guys, Nikhil has said a few very important and very interesting things. I've noted those points down. Just to add something, like what he said was crystal clear. Just to add how I have received it and how my students, like, these things are something that I always keep discussing with my students. Say, for example, he made reference to understanding the language of UPSC. He paid a lot of emphasis on understanding the language of UPSC, and he gave example of RBI buying money. That question, and the statement said, if the inflation is high, RBI would buy money. So that, as Nikhil said, that's a very counterintuitive statement. Already inflation बहुत ज्यादा है और आप फिर से money buy कर रहे हो. That would lead to an explosion. So the point that Nikhil said was very pertinent. काउंटर इंट्यूटिव स्टेटमेंट्स यूपीएससी ऑलमोस्ट एक हिंट की तरह, एक बेनोवलेंट हिंट की तरह हमको देती है. इफ वी हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट एंड इफ यू हैव द विजन टू लुक फॉर दैट काउंटर इंट्यूटिव स्टेटमेंट, वी कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन इजीली. एक सिमिलर एग्जांपल 23 का लें. निखिल ने 22 वाला एग्जांपल बताया है. 23 में भी एक क्वेश्चन आया था इस फॉर्मेट में कि विच हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, none of the above. Per se that was a difficult question. Students found it difficult and it was difficult. ऐसा नहीं बोलूंगा कि that was a very easy question to do. But that was such a question that no one could do it in the examination hall based on their learning. कोई इतना डिटेल में इंटरनल सिक्योरिटी प्रीलिम्स के लिए पढ़कर नहीं जाता, होम गार्ड्स एक्ट के बारे में कोई पढ़कर नहीं जाता. लेकिन जो काउंटर इंट्यूटिव नेचर ऑफ स्टेटमेंट्स निखिल ने बताया है, उस क्वेश्चन में भी वही था. एक स्टेटमेंट में यूपीएससी बोल रही है कि दो होम गार्ड्स एक्ट एज एन ऑक्सिलरी फोर्स टू पुलिस, स्टेट पुलिस, और एक दूसरे स्टेटमेंट में बोल रही है कि दे आर फॉर्म्ड अंडर द रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एक्ट्स पास बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. क्वाइट अ काउंटर इंट्यूटिव डायनामिक बीइंग प्रेजेंटेड. अगर स्टेट पुलिस को हेल्प कर रहे हैं होम गार्ड्स, they cannot be enacted under set central government rules.
हम सबको पता है पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट. सो अगेन नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट द काउंटर इंट्यूटिव नेचर ऑफ स्टेटमेंट्स दैट यूपीएससी इज गिविंग इन द वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस. और ये तो प्रैक्टिस के बाद ही आएगा, जैसे निखिल ने बताया. ऑल्सो ही ऐड मेड कर देता हूँ रेफरेंस. सर, आप जो अभी कह रहे हो कि काउंटर इंट्यूटिव नेचर वाला, जैसे इसमें आपको हो सकता है कि काउंटर इंट्यूटिव कोई चीज लगी, तो अब जो नए ऑप्शन है ना, उसमें एडवांटेज आपको ये होता है कि अगर आप गलत वाले को भी सही मान रहे हो ना, तो हो सकता है कि आपका आंसर आप सही मार्क करके आ जाओ, कि दो यस यस स्टेटमेंट्स है यस. काउंटर इंट्यूटिव, ए और बी। आपको लग रहा है कि ए सही है जबकि बी सही था, और आपने बोला कि नहीं एक स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ए तो गलत है, एक्चुअली में बी गलत था, लेकिन आपने वही मार्क किया कि ओनली वन इज रॉन्ग, यस 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 फिर यस. भी आपका आंसर सही हो गया। तो ये इस तो नए ऑप्शन से दोनों, इट हैज बोथ गुड, लाइक गुड साइड टू इट एज वेल, कि वो आपको see, एक्चुअल क्या गलती है ना वो छुपा सकते हैं। yes, yes, very true, and I can see the smile on Nikhil's face. The smile is because जो फॉर्मेट है नया वाला, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ऑल फोर और नन वाला, उसके बारे में एक खौफ का माहौल है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि ये तो इतनी खतरनाक चीज डिवाइस कर ली है यूपीएससी ने कि अब कोई चांस नहीं है. बट जैसे निखिल ने बताया, आपको दो स्टेटमेंट्स काउंटर इंट्यूटिव लग रही हैं, इनकम्पेरेबल लग रही हैं, इनकम्पैटिबल लग रही हैं, दोनों में से एक गलत है. अब आपको भले ही पता नहीं है कि दोनों में से कौन सी गलत है, स्टिल यू विल बी एबल टू मार्क ओनली वन, ओनली टू. तो आपका काम वहां पर आसान हो रहा है इवन इन इन दैट फॉर्मेट. सो दिस इज समथिंग निखिल इज एम्फसाइजिंग ऑन. उसके अलावा 2022 के पेपर में निखिल मेड रेफरेंस टू अ मैंडेटरी प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू डेप्यूटी स्पीकर. सो निखिल basically emphasized that India is a democracy, and something that takes things to the extreme or something that sounds undemocratic is more likely to be wrong. और एक एग्जांपल दिया निखिल ने इस कॉन्टेक्स्ट में, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन यह समथिंग इज मैंडेटरी, जनरली अनडेमोक्रेटिक और एक्सट्रीम वर्डिंग सही नहीं होती है. एंड दिस इज समथिंग that Nikhil has learned through PYQs, and this is something I discuss with my students as part of Dominate Prelims program. To give an example of 2023 paper, मैंडेटरी वाला जो बताया निखिल ने 2022 में, गाइस देयर वाज अ क्वेश्चन इन 2023 in which it said XYZ treaty is binding on the member states. Again guys, member states international arena में there are very few things which are binding, only few treaties which are legally binding on the member states. So again, अनडेमोक्रेटिक लैंग्वेज है, हमको पता है इस टाइप की लैंग्वेज अगर है, जनरली स्टेटमेंट वो गलत होती है. अगेन लैंग्वेज रिकॉग्निशन का एग्जांपल है 2023 से. Again, something that he mentioned from the same question on polity, there was another statement that said that XYZ is well established. Again, Nikhil has observed that जब यूपीएससी एम्फोसिस ऐड कर रही है, समथिंग इज वेरी वेल डिफाइंड, समथिंग इज वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड एंड सो ऑन, तो वहां पर गड़बड़ होने का चांस ज्यादा होता है. वहां पर यूपीएससी एक तरीके से हमको एक बेनेवोलेंट हिंट दे रही है. Again, there are similar questions in 2023, but let's jump to geography question that he has discussed, Nikhil. He made reference to monazite sand, and एक statement उसमें ऐसा था कि it is found on entire coastal sands. अब he didn't know the answer for sure, but logically it didn't make sense to him. पूरे पूरे के पूरे भारत देश के कोस्टल कोस्ट के ऊपर ये सैंड मिलता है. इफ दैट वुड बी द केस, वी वुड हैव नोन. बेसिक ज्योग्राफी हमने पढ़ रखी है, एनसीईआरटीज पढ़ रखी है, करंट अफेयर्स हम फॉलो करते हैं. सो अ प्रीटी काउंटर इंट्यूटिव स्टेटमेंट जिसका आंसर पता ना होते हुए निखिल वाज एबल टू मार्क इन द एग्जामिनेशन हॉल. Yet again another hint given by UPSC which Nikhil could catch in the exam hall based on his practice. Something that he mentioned was क्वेश्चन में ही आंसर एंटायर कोस्टल सैंड में मिलता है, एंटायर कोस्ट पे मिलता है ये वाला सैंड, क्वेश्चन में ही आंसर मिल रहा है. Also, he made reference to biofilms, and in that question he said, ऐसा नहीं है कि कोई वर्ड अगर आ रहा है साइंस एंड टेक में, कैन, सम, तो वो सही ही होगा. दैट इज ट्राइवलाइजिंग ऑफ क्वेश्चंस, एंड दैट इज ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ क्वेश्चंस. ऐसा जरूरी नहीं है. बट इन जनरल जो जो ट्रेंड हमने देखा है, अगर स्टेटमेंट को टेम्पर करना है, हमने थोड़ी देर पहले क्या सीखा कि स्टेटमेंट को अगर एक्सट्रीम बनाया जा रहा है, अनडेमोक्रेटिक बनाया जा रहा है, देन दैट इज मोर लाइकली टू बी रॉन्ग. लेकिन अगर स्टेटमेंट्स को, ये ऑप्शंस को टेम्पर किया जा रहा है, मध्यम मार्ग पर लाया जा रहा है, दे आर मोर लाइकली टू बी करेक्ट. दिस इज समथिंग निखिल एम्फसाइज्ड. एंड व्हेन ही गेव एग्जांपल ऑफ बायोफिल्म्स कैन डू एक्स वाई जेड, तीन स्टेटमेंट्स थे. गाइस, सिमिलर लाइंस पे देयर वाज अनदर क्वेश्चन इन 2023 इसी लाइन पर. सम मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, सम मशरूम्स हैव बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज.
सम मशरूम्स हैव XYZ, चार स्टेटमेंट्स थे. देयर इज नो वे यू कैन बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्वेश्चन. कोई इस तरीके से पढ़कर नहीं जाता मशरूम के बारे में इतना डिटेल में. कोई पीएचडी नहीं कर रहा है मशरूम्स के ऊपर. बट सेम सेम लॉजिक, सेम लर्निंग फ्रॉम पीवाईक्यूज. सम अगर बोला है और आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछा है, लेकिन बुद्धा का मध्यम मार्ग फॉलो हो रहा है, वहां पर टेम्पर किया गया स्टेटमेंट को, इट इज मोर लाइकली टू बी करेक्ट. एंड आप में से कई लोग जिन्होंने 2023 का अटेम्प्ट दिया है, यू मार्क ऑल द ऑप्शन स्टेटमेंट्स एज करेक्ट एंड दैट वाज द करेक्ट आंसर. सो अगेन, टेम्परिंग और मध्यम मार्ग वाले जो स्टेटमेंट्स है, जैसे निखिल ने एम्फोसाइज किया, दोज आर मोर लाइकली टू बी करेक्ट, समथिंग ही लर्नड फ्रॉम पीवाईक्यूज. देन सिमिलरली, जैसे पहले पॉलिटी के क्वेश्चन में निखिल ने बताया कि मैंडेटरी वहां पर था, डेप्यूटी स्पीकर की प्रोविजंस, दोज आर मैंडेटरी, सो दैट रेज द रेड फ्लैग फॉर निखिल. सिमिलरली, आयुष्मान भारत वाला जो क्वेश्चन था 2022 में, उसमें जो स्टेटमेंट था, XYZ एंटिटी मस्ट अडॉप्ट, फिर से जबरदस्ती की जा रही है. एंड इन डेमोक्रेसी जबरदस्ती से काम नहीं चलता, कंसेंसस का होना जरूरी है. ऑल्दो वी डोंट नो द करेक्ट आंसर, निखिल को करेक्ट आंसर पता नहीं था, बट ही अंडरस्टूड दैट इस स्टेटमेंट में कुछ तो गड़बड़ है. एंड ही वॉज एबल टू मार्क आउट कि ये स्टेटमेंट के गलत होने के चांसेस ज्यादा है. उसने एलिमिनेट किया और उसको डायरेक्ट आंसर मिल गया. सिमिलरली 2023 का हमने डिस्कस किया है, बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट. जनरली बाइंडिंग नहीं होते हैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, बहुत कम होते हैं जो बाइंडिंग होते हैं. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट निखिल एम्फसाइज्ड ऑन वाज प्रायोरिटाइजिंग कंटेंट, प्रायोरिटाइजिंग इंफॉर्मेशन और प्रायोरिटाइजिंग थीम्स. ही मेड रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड ही सेड अक्सर हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पर क्वेश्चन आता है. सो व्हाट इज आवर ड्यूटी एंड व्हाट वाज हिज ड्यूटी व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम? He prioritized, when he was reading modern history, he prioritized theme of Government of India Act and other themes जो बार बार रिपीट होते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन थीम वही होती है. So this is nothing but what I keep discussing with my students. I use the term PYQ anchoring और structured PYQ analysis. जैसे निखिल ने बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पर क्वेश्चन बार बार आ रहा है. योर ड्यूटी इज टू प्रायोरिटाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड अदर थीम्स एंड अदर टॉपिक्स जिस पर क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं. इसी लाइंस पर गाइस 2023 में क्वेश्चन था ऑन वोल्बाकिया. एंड लास्ट ईयर जो 2023 का डोमिनेट प्रीलिम्स का बैच था, और कुछ स्टूडेंट्स अभी भी ज्वाइन किए हुए हैं लास्ट बैच वाले, इन दैट बैच आई हैड डिस्कस्ड अ क्वेश्चन ऑन लेमन ग्रास. यूपीएससी ने 2021 में लेमन ग्रास पर एक क्वेश्चन पूछा था मॉस्किटो कंट्रोल के कॉन्टेक्स्ट में. एंड इन दैट क्लास वी हैड डिस्कस्ड द पॉसिबल क्वेश्चंस and possible themes that can emanate from that question, because the focus was on mosquito control, means of mosquito control, and under the head of other means of mosquito control we had discussed in the class about the Wolbachia method. And 2023 में there was a direct question on Wolbachia method, something very similar to what Nikhil has emphasized. जो themes बार बार रिपीट हो रही है, मॉस्किटो कंट्रोल पर क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेमन ग्रास पर क्वेश्चन आया था, और किस चीज पर आ सकता है, वोल्बाकिया हमने प्रिपेयर किया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था वोल्बाकिया पर एग्जाम हॉल में. देर आर अ फ्यू स्टूडेंट फ्रॉम द लास्ट बैच एज वेल जिन्होंने वहां पर सही मार्क किया था एग्जामिनेशन हॉल में. अदरवाइज गाइस दैट क्वेश्चन वाज प्रीटी डिफिकल्ट अगर हमने नहीं पढ़ा है, क्योंकि वो 3 साल पहले के करंट अफेयर्स में था वोल्बाकिया, रिसेंट करंट अफेयर्स में दैट वाज नॉट कवर्ड. ऑल्सो ही मेड रेफरेंस टू राजा राम मोहन रॉय, एंड क्योंकि राजा राम मोहन रॉय पे भी क्वेश्चन पीवाईक्यू में पास ईयर प्रीलिम्स में आ चुका है. प्रायोरिटाइजिंग योर कंटेंट, राजा राम मोहन राय एंड अदर रिफॉर्मर्स का एग्जांपल दिया निखिल ने. सिमिलरली गाइस, टू ऐड अ क्वेश्चन, महात्मा गांधी के बारे में एक ट्रेंड यूपीएससी ने फॉलो किया है ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स. यूपीएससी हैज बीन फॉलो आस्किंग काउंटर इंट्यूटिव क्वेश्चंस related to Mahatma Gandhi. Say for example there was a question on songs from prison. Songs from prison किसने लिखा है? And the correct answer was Mahatma Gandhi. Many people mark Sarojini Naidu in the exam hall because it is difficult that अगर हमने नहीं पढ़ रखा है, it is difficult that we would imagine in the examination hall कि the correct answer would be Mahatma Gandhi. What is our duty in keeping with Nikhil? जो निखिल ने बताया, prioritize करो content based on your PYQs. Our duty is महात्मा गांधी से जुड़े हुए जो भी काउंटर इंट्यूटिव फैक्ट्स हैं उनको नोट डाउन करो. दैट इज आवर फर्स्ट ड्यूटी व्हेन वी आर रीडिंग मॉडर्न हिस्ट्री. काउंटर इंट्यूटिव फैक्ट्स जो भी हैं, जो हम
गलत कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, उनको नोट करो। उसके बाद बाकी का आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो। तो दिस इज समथिंग, दिस इज पीवाईक्यू प्रेप दैट वी आर डूइंग इन कीपिंग विद पीवाईक्यूज। अगेन समथिंग emphasized quite emphatically by Nikhil. And ultimately he emphasized on confidence, यूपीएससी वाला सी, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस किस चीज से आता है? एज निखिल सेड, आपको लैंग्वेज पता चल जाती है, और आपको ये कॉन्फिडेंस अल्टीमेटली आ जाता है खुद के ऊपर। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, कि अगर मुझे नहीं आ रहा है तो इट इज हाईली प्रोबेबल कि बाकी लोगों को भी नहीं आ रहा होगा। मुझे नहीं पता, बाकी लोगों को भी नहीं पता होगा। यू आर ऑन एन इक्वल स्टैंडिंग। लेकिन पीवाईक्यू एनालिसिस मेटिकुलस तरीके से नहीं करा है, एग्जामिनेशन हॉल में आप ये सोचोगे कि ये क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल पूछ लिया, अब मेरा क्या होगा। Right? So this is the difference between having that confidence based on PYQ analysis and not having confidence while not doing PYQ analysis. And yes, guys, many students have been also pinging me on Telegram. They have been sharing DM on Telegram while this session is active. Guys, before I start taking questions, कल वाला मिस्टर रोहित पांडे, को फाउंडर सिविल्स डेली, उनका वेबिनार हुआ था yesterday evening. Many students had come up in that session. They had made the same request, and those आज जो मुझे पिंग कर रहे हैं students, they are also making the same request. Some students said that they have already enrolled in Drishti. One student said that he was already enrolled in Byju's, and the discussion, उससे जो निष्कर्ष निकला था कि those institutions are doing good at their own level. For example, Mr. Rohit Pandey said that he is a big fan of Mr. Vikas Divyakirti, but their content team is not doing great. So जो भी students ऐसे हैं who have already enrolled in some other prelims program, Rohit sir yesterday had said, and I'm reiterating the same thing, in order to not overburden you, we will give you the best discount to enroll in Dominate Prelims 2024. You just need to drop in your WhatsApp number in the chat box. My team will take up that WhatsApp number from the chat box. Also, I am adding the link to Dominate Prelims 2024 in the chat section. You can get all the relevant information about the program from the chat section itself. And I have shared the link. Fine, guys. Now we can quickly move to the Q&A session. जो भी आपके डाउट्स हैं आप चैट बॉक्स में बताओ, और यू कैन रेज हैंड, विल अलाउ यू टू अनम्यूट. Let's take these questions one after the other. Nikhil, there is a student saying, but sir, in 2023 options are changed to only one sentence, only two, only three, only four. So is this way of applying logic, is this relevant? What would you say? I think, sir, we already just showed an example where this was applicable. Like we had two counterintuitive statements, and it was actually easier for us to find out the right answer with that counterintuition. कि अब मुझे पता है कि वन सही है या थ्री सही है, अब दोनों में मैं भी कंफ्यूज हूँ कि वन और थ्री तो उल्टे हैं, तो दोनों साथ में तो सही नहीं होंगे। अब उतना मुझे अगर पता है तो आई विल जस्ट एलिमिनेट कि हाँ चलो ठीक है, एक स्टेटमेंट तो गलत है। इट बिकम्स इजियर फॉर मी, राइट? अब मैं सही उस वाले पुराने फॉर्मेट में अगर वन थ्री एंड फोर दिया हुआ है कहीं पर, और वन टू एंड फोर कहीं पे, मतलब वन एंड थ्री दिया हुआ है कहीं, मतलब कोई अगर ऑल्टरनेट करके दिया हुआ है, तो आई वुड बी मार्किंग द क्वेश्चन में 50% प्रोबेबिलिटी। लेकिन अब मैं उसी चीज को 100% प्रोबेबिलिटी के साथ सही मार्क भी कर सकता हूँ। तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों है, हो सकता है उस ऑप्शन से चीजें कहीं किसी क्वेश्चन में डिफिकल्ट होंगी, किसी क्वेश्चन में वो आसान भी बन रही है, स्पेशली असर्शन रीजन। तो रादर देन गिविंग वन करेक्ट, टू करेक्ट, बोथ करेक्ट एंड नॉन करेक्ट को उसने बस असर्शन रीजन में कन्वर्ट कर दिया एक तरह से, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके। तो ऑलमोस्ट उसको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे वो पहले था और अब है, मतलब बहुत सिमिलर लाइन पे वो एक कंपैरिजन हम लोग को दिख जाएगा। Very true, very true. So, in keeping with what Nikhil has said, ये कोई exact science नहीं है. अगर आपको आंसर नहीं पता, there are only two ways of doing it. Either you skip the question or you take risk. ठीक है। और अगर risk ले रहे हो, you can get it right, you can get it wrong. But at least risk लेने पर there is a chance that you might get it right. Right? So that is more important. And keeping with the trend of prelims paper in 2022 and more so in 2023, risk लेना is a must. It is a categorical imperative now. If you have to clear the cutoff, risk नहीं लेंगे, we'll be falling short of the cutoff. Something that Nikhil would concur with me.
सर प्रीलिम्स में रिस्क के बिना तो क्लियर नहीं कर सकते आप, मतलब किसी को भी ऐसे 20-30 क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा पता नहीं होते, ऐसा कोई ऐसे टॉपर आके अगर आपको बोल दे कि मुझे 70 क्वेश्चन पता थे 100 में से, तो 60 क्वेश्चन पता थे 100 में से, तो वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव दैट। मतलब या इतना नॉलेज होना बहुत मुश्किल है, अगर अनलेस एंड अनटिल आप रिस्क नहीं लेते हो, आप अप्लाई नहीं करते हो नॉलेज या कुछ मतलब लॉजिक नहीं लगाते हो, तो वो 30 के बाद वाला जो गैप है ना, 30 क्वेश्चन तक हो सकता है आपको अच्छे से आते हो, मतलब कि हाँ यही आंसर होगा। बाकी तो 20-30 क्वेश्चन जो आप ऊपर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करते हो, 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करते हो, दैट इज बेस्ड ऑन टेकिंग रिस्क, कि हाँ इसमें लग रहा है कि ये दोनों में से कोई एक है, चलो एक के साथ जाते हैं। तो यू हैव टू टेक अ रिस्क, वो रिस्क टेकिंग बिहेवियर आपने देखा भी आता है, दे आर लुकिंग फॉर पीपल हु कैन टेक रिस्क, मतलब तो एग्जाम में भी। certainly, and if you are an ascribing civil servant, you need to be a risk taker, as simple as that. Uh, sir, how we solve PYQ after one revision of that topic or parallel to that topic? Okay, Nikhil, if you would want to jump in. Yeah, so I mentioned there's a book by Disha publication that I used. So it has topic-wise prelims questions. So basically, ancient history के ऊपर एक पूरा section है, फिर modern history पे पूरा question है. तो if you want to study and then parallelly go with prelims questions, PYQ questions, you can do that. वो भी आप खेल कर सकते हो, जैसे मैंने एक इमेज दिखाया जिसमें मैंने सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री सॉल्व किया है। तो ये थिंक या सो एंशियंट हिस्ट्री सॉल्व किया है, इसके 20 क्वेश्चन, तो ये मैंने वही दिशा पब्लिकेशन की जो बुक आती है PYQ टॉपिक वाइज वाली बुक उठा लो। मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब उसमें सेक्शन वाइज डिवाइडेड, और उस सेक्शन को आप सॉल्व करो सिर्फ, और आपको जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ लिया, एंशियंट हिस्ट्री क्वेश्चंस बना लो, फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया, मॉडर्न के क्वेश्चंस बना लो। उससे ज्यादा फर्दर एकदम टॉप एकदम एक एक सिलेबस वाइज ब्रेक करना तो बहुत मुश्किल है, कि आप एक एक टॉपिक एक चैप्टर वाइज ब्रेक करो उसमें। Okay, cool, cool. Uh, Adi is asking how to analyze PYQ themes. Adi, Nikhil has already discussed this in detail. I think you have joined late. Uh, and also, I have mentioned about the Dominant Prelims program where we do PYQ analysis in a very structured manner. कितना Sonu is asking कितना PYQ करना चाहिए. He's asking basically how far back you should be going with respect to ट्वेंटी PYQ. इलेवन 2011 टिल लाइक लीस्ट 10 ईयर्स, तो अगर आप 2011 तक जा सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने 2011 से लेके अब तक का जितना भी मैंने किया है। Okay, so Nikhil is saying 2011 से आप PYQ शुरू करो. Probably Nikhil might be surprised a bit because I am making my students do PYQs of the last 25 years. Because उस तरह की लिंकेज बन रहे हैं 2022 और 2023 में. काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, काफी सारे, मतलब जैसे निखिल ने बताया कि अगर 2 मार्क का भी आपको एज मिल सकता है, दैट इज अ बिग हाँ थिंग. मिल सकता है तो आप ले लो, राइट. तो थोड़ा सा यहाँ सब्जेक्टिविटी रहेगी, लेकिन मिनिमम जो निखिल बोल रहा है ट्वेंटी हाँ इलेवन से तो आपको करना ही है. इफ यू कैन गो बैक, जैसे मैं अपने स्टूडेंट से करवा रहा हूँ, दैट्स इवन बेटर. लेकिन प्लीज या डोंट गेट लॉस्ट इन द ओशन ऑफ पीवाईक्यूज. आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स डूइंग पीएचडी लेवल रिसर्च ऑन पीवाईक्यूज एंडलेसली. यू विल हैव टू डू इट इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड मेटिकुलस मैनर. एक बेसिक लेवल तक आप करो, लेकिन उसके बाद अगर अगर आप बहते जा रहे हो, देन फॉर दैट यू नीड अ ग्रुप ऑफ सीरियस एस्पिरेंट्स. आपका फ्रेंड, आपका क्लोज नेट ग्रुप सीरियस एस्पिरेंट्स का, साथ में मिलकर आप करो. और हैव सपोर्ट ऑफ अ मेंटर. अब मेंटर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं या सिर्फ निखिल. एनी सीनियर पर्सन हु हैज मोर एक्सपीरियंस देन यू. इट कैन बी a senior aspirant, it can be someone who has bagged a rank, it can be any बड़े भैया, बड़ी दीदी, whatever. But in order to avoid being lost, have the help of a mentor and do it in a close knit group of serious aspirants. देन गाइज, डू आस्क योर क्वेश्चंस, जो भी आपके डाउट्स हैं डायरेक्टेड टुवर्ड्स निखिल और मी. डू आस्क देम इन द चैट बॉक्स और रेज योर हैंड. विल अलाउ यू टू अनम्यूट. प्लीज शेयर दिस सेशन ऑन टेलीग्राम. ओके, later it will be shared, Hina. Later it will be shared. Sir, how should we solve PYQs, topic wise or year wise? Although this sounds a simplistic question, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है निखिल. What would you say? टॉपिक वाइज बाय स्टडिंग, ईयर वाइज आफ्टर स्टडी, मतलब जब प्रीलिम्स के पहले 20 दिन बचेंगे, 10 दिन 30 दिन बचेंगे, तब ईयर वाइज लगा लो एक बार के सारे पेपर की, हाँ वो स्ट्रैटेजी और वो सब में काम आएगा। पढ़ते टाइम जस्ट टू गाइड यू एंड टू हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज टू बी फोकस्ड अपॉन, यू कैन डू इट टॉपिक वाइज। Okay, Nikhil, Vijay has asked, sir, how we manage time with job. Now again, this is more pertinent question.
because you have constantly prepared while being on a full-time job, right? 3 attempts you have given. So if you have to give a brief answer, how do you manage time while being on a job? So what I used to do is I used to work ahead of my work schedule. So basically अगर मुझे कोई चीज़ डिलीवर करनी है फ्राइडे को, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं उसको मंडे ट्यूसडे या वेंसडे तक मैक्स खत्म करूँ, ताकि मेरे पास वो 2 दिन पढ़ने के लिए अच्छे से हो, ताकि बिकॉज आई कैन फोकस फुल टाइम एंड स्टडी ऑन दैट पर्टिकुलर, आई कैन स्टडी ऑन दोज 2 days, आई कैन यूटिलाइज दैट टाइम। एंड उसके बाद जब मैं ऑफिस जाता था, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू लिसन टू ऑल इंडिया न्यूज, वो ऑल इंडिया रेडियो का जो न्यूज आता है, टॉपिक्स आते हैं। आई यूज्ड टू कीप माई ईयरफोन्स विद मी, आई यूज्ड टू लिसन टू देम व्हाइल वर्किंग और व्हाइल वॉकिंग। तो मेरे कान में ईयरफोन्स लगे हुए हैं, मैं कुछ सुन रहा हूँ, मैं जान मतलब मेरा एक करंट अफेयर का टॉपिक कवर हो रहा है, एक टॉपिक प्रिपेयर हो रहा है, वो सब चीजें वहां पर हेल्प हो रही है। तो यू हैव टू लाइक फाइंड आउट व्हेन यू कैन यूटिलाइज योर टाइम, लाइक जल्दी उठ सकते हो सुबह। तो जब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, आई यूज्ड टू वेक अप लाइक अराउंड 6 a.m. इन द मॉर्निंग, 5 a.m. इन द मॉर्निंग, एंड देन 6 तक तैयार होता था। फिर मतलब कोचिंग में जानी होती है या पढ़ाई भी करना होता है, तो आई कैन डू इट बिफोर द ऑफिस आवर्स। तो बिकॉज उस टाइम एनर्जी आपकी हाई रहेगी, ऑफिस से आ जाओगे तो काफी ड्रेन हो जाओगे, फिर उसके बाद उस समय आपके लिए पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इधर यू हैव टू डू इट अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर लेट इन द इवनिंग। और वीकेंड्स तो आपके पास पूरा है, तो वीकेंड तो आप जितना यूटिलाइज करो, जितना खींच पाओ वीकेंड, तो दैट इज योर। तो अगर आपके वीकेंड्स में अगर आपका वर्क शेड्यूल है, तो कभी कभी जैसे कुछ मान लो कोडेड में इश्यूज आ गए थे हमारे, तो वी हैव टू डू सम डिबगिंग और वी डू सम वर्क ऑन द वीकेंड, तो फिर उसके लिए कॉम्पनसेटरी लीव्स हम लोगों को मिल जाती है। तो आई यूज्ड टू यूटिलाइज दोस कॉम्पनसेटरी लीव्स टू लाइक कॉम्पनसेट फॉर माय स्टडीज। तो जहाँ पे भी है वो तुम्हें अपने लाइक यू हैव टू बेस्ड ऑन वट एवर योर वर्क शेड्यूल इज, व्हाट इज योर वर्किंग आवर्स, यू हैव टू फिगर आउट योर स्पेसिफिक टाइम व्हेन यू वुड लाइक टू गिव फॉर योर स्टडीज। वो अगर डिफाइंड है, वो अगर आप निकाल पा रहे हो, वो अगर आप पैरेलली देख पा रहे हो, तो वो आपको हेल्प करेगा। Okay, Shubham is asking one basic question: from where should one start his preparation from scratch? Now, Shubham, this is a very generic question. Superficial answer मैं दे दूं या निखिल दे दूं, that won't help you, right? If you are starting from scratch, do drop your number in the chat box. My team will get in touch with you. If you are starting with scratch, we need to understand where do you stand, your blind spots, everything, right? Drop your number. We'll get in touch. Which one is good way to analyze PYQ? Sakshi, we have just discussed this, Sakshi. How many years of PYQs to be solved? Again, we have just discussed this. Sharad Chandra, Tanmay, along with full-time job or work from home, how to optimize time? Again, we have just discussed this. Saloni is saying, please repeat the name of the book on PYQ topics, topic-wise Disha, PYQs. Disha Publications PYQ topic wise previous year questions, Disha Publication. Okay, Nikhil is saying Disha Publications. Guys, while I read the questions, just post your questions in the chat box, guys. We'll take those up. Any tips for full-time working professionals? We have just discussed this. Akshita is saying, sir, current affairs के questions कैसे analyze करें PYQs के? I think we have discussed this, but still, if you want to add something, Nikhil. आई थिंक मैं तो बोलूंगा करंट अफेयर्स के पीछे ज्यादा नहीं भागो, मतलब द वे टू लुक एट करंट अफेयर्स इज कि आपने पीवाईक्यूज कर रखे हैं, उसके ऑन टॉप ऑफ दैट यू कैन प्रैक्टिस मॉक्स या प्रैक्टिस एमसीक्यूज, मतलब मॉक टेस्ट कहीं से भी उठा करके, तो वो भी आपका करंट अफेयर्स टू सम एक्सटेंट कवर करा देते हैं इफ यू रिव्यू दैट एंड उसके नोट्स बना लो। क्योंकि ऐसे अगर सिर्फ करंट अफेयर्स के पीछे भागोगे प्रीलिम्स के लिए, तो बहुत मुश्किल है। पीटी 365 तो पढ़ लो, बेसिक है, मतलब जो वट एवर बेसिक थिंग्स यू कैन डू, कैच होल्ड ऑफ दैट, बट डोंट रन आफ्टर करंट अफेयर्स इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। Okay, so a very important point being emphasized by Nikhil. Current affairs के पीछे ज्यादा मत भागो. And something which Nikhil would also concur with me कि guys आप कितना भी करंट अफेयर्स के पीछे भाग लो, कितना भी करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर लो 10 अलग अलग सोर्सेस से, देयर विल ऑलवेज बी अ सैचुरेशन पॉइंट इन द एग्जामिनेशन हॉल. एक पॉइंट के बाद आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे. देयर विल ऑलवेज बी सम क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स, सोर्स फ्रॉम करंट अफेयर्स, जहां पर आपको कुछ ना कुछ दिमाग बुद्धि लॉजिक लगाकर ही उसको सॉल्व करना पड़ेगा. से फॉर एग्जांपल 2023 में ही एक क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022. लास्ट ईयर का क्वेश्चन है 2023 का. बताओ मुझे आप लोगों में से कितनों ने वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़कर गए थे एग्जाम में, या अभी आपने पढ़ रखी है? सो सच क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड और दे आर डिराइव्ड फ्रॉम करंट अफेयर्स, लेकिन वो आप नहीं कर पाओगे. जैसे निखिल ने बताया, ज्यादा करंट अफेयर्स के पीछे मत भागो, एक बेयर मिनिमम लेवल का प्रिपरेशन कर लो. बाकी जो क्वेश्चंस होंगे हॉल में, यू विल हैव टू सॉल्व देम देयर एंड देन एंड देयर.
Please, please don't fall into this trap of preparing till infinity, studying till infinity. UPSC Civil Services examination, be it prelims, mains, interview, it is not at all about studying till infinity or doing thousand revisions. It is having the, it is more about having the right direction, जिसके बारे में निखिल बार बार emphasize कर रहा है. Okay. This is Shubham. Should I start preparation from scratch? Shubham, I think we have discussed this. Share your number in the chat box. My team will get in touch with you. Telegram ID. I think Kiran is asking my Telegram ID. Kiran, just share your number in the chat box. My team will share the Telegram ID with you from there itself. Ashwini is saying, sir, I'm first टाइम अटेम्प्ट करना चाहती हूँ यूपीएससी एग्जाम, लेकिन एक डर है मन में कि पहले से सब स्टडी करके रहे हैं, तो हम फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे कर सकते हैं, उस डर को कैसे दूर करें. अगेन अश्विनी, दिस योर क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ शुभम. आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हो एंड यू हैव दिस एंग्जाइटी, यू हैव दिस फोमो, बाकी सब लोग इतना तगड़ी तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं कहाँ पीछे छूट रही हूँ. जस्ट ड्रॉप योर नंबर इन द चैट बॉक्स. सुपरफिशियल आंसर अगर निखिल आपको दे दे या मैं दे दूं, दैट वॉन्ट हेल्प यू. ठीक है, यू नीड डिटेल कॉन्वर्जेशन. ओके, शुभम ने नंबर शेयर किया है. कुणाल is asking an interesting question. Dear sir, did you ever thought of leaving the job and go full-fledged? that thought always comes in your mind because it's a competition और आप देख रहे हैं कि आपके बाकी दोस्त या बाकी लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो 12-12 घंटे रोज दे पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं. यू ऑलवेज हैव दैट लाइक फीलिंग कि यार मैं इतना प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा हूँ या मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पा रहा है, बाकी लोग तो पूरा मतलब फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा, वो दोस थिंग्स कम टू योर माइंड. बट या इट्स लाइक योर प्रायोरिटीज या आपका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आपको मतलब केटर करनी पड़ेंगी. तो आई हैड सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की मुझे पता है कि हाँ जॉब तो छोड़ना मेरे पास एक ऑप्शन नहीं है क्योंकि मेरे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. तो अब जब नहीं है तो मुझे अगर करना है तो इसके साथ ही करना है, नहीं तो नहीं करना है. तो मेरे पास ये था कि या तो नहीं करना है तो करना है, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं. सो आई हैव टू डू द जॉब, दैट इज माय प्रायोरिटीज. और मेरा ये था कि आई एंजॉयड द जॉब दैट आई डिड, सो मेरे को कभी वो नहीं लगा लाइक कंप्यूटर साइंस इज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स और मैंने हमेशा उसको इंजीनियरिंग को बहुत एंजॉय करके किया है. सो इसलिए मेरे को जॉब को भी ऐसा बर्डन लगता था, लेकिन ये हमेशा लगता था कि यार एग्जाम में तो मैं पीछे छूट रहा हूँ बिकॉज जैसे अभी आई थिंक समवन हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि मैं पीछे, आई थिंक मैं पीछे हो गई हूँ या ऐसा कुछ. सो आई यूज्ड टू फील दैट टू कि हाँ भाई मेरा तो मतलब जॉब भी चल रहा है और इतने घंटे मैं दे नहीं पा रहा डेली बेसिस पे, बाकी लोग कंटिन्यूसली स्टडी कर रहे होंगे, कितना पढ़ रहे होंगे, मतलब तो दैट फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है ना वो रहता है. तो इसलिए वो कॉन्फिडेंस वाला फैक्टर जो यूपीएससी में मैंने एम्फोसाइज किया है कि वो सी आपके पास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आपके अंदर क्यों, किस बेसिस पे आपका क्यों हो, आपने ऐसा क्या किया है जो आपका हो जाए और बाकी लोगों का नहीं है. तो वो कॉन्फिडेंस वाला फैक्टर वहां पर आता है. यस. Similarly, Harsh भी यही पूछ रहा है, सर आई एम फाइनली अ स्टूडेंट, आई एम कंफ्यूज, शुड आई गिव माय फर्स्ट अटेम्प्ट फुल फ्लेजेड और विद अ जॉब, प्लीज हेल्प. सी हर्ष, जैसा निखिल ने कहा, ना निखिल को ना मुझे पता है कि व्हाट इज योर फाइनेंशियल स्टैंडिंग एंड द अदर कॉन्टेक्स्ट इन विच यू आर सिचुएटेड. बेटर क्लैरिटी के लिए शेयर योर नंबर इन द चैट बॉक्स. माई टीम विल गेट इन टच विथ यू फॉर having better clarity and better conversation as to what you should be doing. Okay. डी, अपना पूरा नाम लिखो गाइस. डी इज आस्किंग, haven't been able to clear the prelims last 2 times. I have covered the basics. Should I entirely focus on the PYQs rather than mocks? Entirely focus करना ऐसा कुछ नहीं होता. निखिल, what would you say? इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. यूपीएससी वाले अभी अंडरस्टैंडिंग किया ना, लैंग्वेज अंडरस्टैंड किया ना यूपीएससी का भी, एंटायरली फोकस ऑन एंटायर कोस्टल लाइंस ऑफ इंडिया, वो स्टेटमेंट ही गलत है. वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. एलिमिनेट करो. एंटायर चीज कभी सही नहीं होती, मतलब बैलेंस बनाना जरूरी है कि हाँ पीवाई किस पे फोकस करना है. तो ऐसा नहीं कि स्टैटिक वाई जो पहले का बेसिक बनाया है, बेसिक पढ़ा है वो छोड़ दें और वो मॉक्स छोड़ दें, वो बिल्कुल ऐसा भी सही नहीं होता. पीवाईक्यूज भी इंपॉर्टेंट है, आपका जो बेस स्टैटिक नॉलेज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में अगर आप मॉक्स दोगे तो आपका करंट अफेयर्स इंप्रूव होगा. तो आपको अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज वो आपके ऊपर है. अगर आप एक ही चीज करोगे तो हो सकता है कि आप उतना ज्यादा नई चीज सीख पाओ, जितना ज्यादा आप कर पाओ उतना अच्छा होगा आपके लिए. या एंड इफ यू स्टिल हैव अ डाउट और अगर क्लैरिटी मिसिंग है, ड्रॉप योर नंबर इन द चैट बॉक्स. माय टीम विल गेट इन टच विथ यू. ओके. करंट अफेयर्स के लिए सोर्स गाइस, निखिल ने जैसे कहा, एंड आई वुड जस्ट
I just say the same thing to my students. Follow any one good source. कोई भी एक अच्छा सोर्स आप फॉलो करो करंट अफेयर्स के पीछे, ज्यादा मत भागो. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस. Is NCRT must to clear basics? Shubham, yes, Shubham is a first timer. Shubham, you have shared your number. डिटेल में आपसे बात हो जाएगी. आयुष इससे आस्किंग, सर प्लीज सजेस्ट द वे टू गेट थ्रू प्रीलिम्स 2024. व्हाट थिंग्स मस्ट बी डन? आयुष, ये इसी बात पर तो निखिल पिछले एक एक घंटे से बात किए जा रहा है कि 2024 के लिए क्या करना है. मैंने भी इस पर एम्फोसाइज किया है. आई ऑल्सो शेयर्ड the link for Dominate Prelims program, and I also announced, keeping with the messages that I'm getting on Telegram. जो students already किसी अलग institution में enrolled हैं, so as to not overburden you, we are providing you the best discounts. We have already addressed this particular doubt. 2024 prelims के लिए क्या करना चाहिए, with special emphasis on PYQs. टेस्ट भी हमने डिस्कस किए, टेस्ट को किस तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग करना है टेस्ट देने के बाद. तन्मय इज आस्किंग नोट मेकिंग एंड रिवीजन टिप्स व्हेन देयर इज क्रंच ऑफ टाइम. तन्मय, निखिल ने ये बोला है कि जॉब करते हुए किस तरह से ही हैज बीन डूइंग इट, बट निखिल, specific to making notes and revision, just to add one thing here before Nikhil jumps in. Guys, yesterday Mr. Rohit Pandey had this session in the evening where he discussed in great detail about note making and what is the best means to make notes for prelims. And he also shared few of the sure shot themes for prelims 2024. Schemes वाला note share किया, species वाला note share किया, the sure shot notes for prelims 2024. Those are the best templates of note making. और उसमें उमा ऑल इंडिया रैंक 3, उमा के भी नोट्स जो जिस तरीके से उमा ने बनाए थे, और आखिरी लेग बिफोर द एग्जामिनेशन, हाउ दोज नोट्स हेल्प्ड हर इन रिवीजन, वो भी उन्होंने डिस्कस किया था. यू कैन गो टू द यूट्यूब चैनल. वहां पर मेरे सेशंस में मैंने लिंक दे रखी है उन नोट्स की. यू कैन फिल द फॉर्म and you can get those notes. I would also request my team if you can share the link so that students can download those notes, fill the form and download those notes. Nikhil, if you could add something more कि टाइम क्रंच है और नोट मेकिंग करना है या रिवीजन मैंने करना. वही नोट्स रिवाइज करने का, और मैंने आई थिंक वो चीज प्रायोरिटाइजेशन वाले पॉइंट में कवर करा था. सो यू कैन सी लाइक हाउ डिड आई मेक द नोट्स. आई मेंशन राइट कि आई हैव हाइलाइटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लास्ट मिनट में, तो मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं पूरा नहीं पढ़ने जा रहा कि हाँ ये हुआ था, ये हुआ था, ऐसे हुआ था या वैसे हुआ था. आई जस्ट सी HLV डिलोजियो, ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट, इनको कॉन्स्क्रिप्ट फादर्स ऑफ आवर रेस भी बोला था किसने, सेन बनर्जी ने बोला था, ठीक है, विश्व चंद्र विद्यासागर. तो मैं इतना पूरा नहीं पढ़ूंगा लास्ट मिनट पे, मैं बस वही पढ़ूंगा जो मैंने हाईलाइट कर रखा है. वही चीज मैंने यहाँ भी कर रखी दिखाई थी कि मैंने यहाँ पे भी चीजें अंडरलाइन कर रखी है. मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा. मैं नोट्स मैंने बनाए, ये छोटे ही बनाए, ये भी मेरे 10 पेज के ही नोट्स है, लेकिन इसमें भी मैं पूरा 10 पेज नहीं पढ़ूंगा. मैं बस ये 10 लाइन पढ़ूंगा जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है, 10 पॉइंट्स या 10 वर्ड्स पढ़ूंगा जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं. तो दैट इज हाउ यू प्रायोरिटाइज इन योर नोट्स. ये आप जो नोट्स बना रहे हो, आप किस चीज पे बना रहे हो, पहले उस लेवल पर प्रायोरिटाइज कर लिया. फिर उस नोट्स में भी आपको क्या है जो किससे क्वेश्चन आ सकता है, क्या चीजें हैं जो आपको एकदम याद रखनी है वर्ड टू वर्ड, कि ये पता होना चाहिए कि हाँ ये वेज रेट इंडेक्स जो है ये लेबर ब्यूरो कोई निकाल रहा है, हाफ ईयरली निकाल रहा है. तो ये सब चीजें जो हैं जो एकदम फैक्ट बेस्ड हैं, जिसके ऊपर आपको चीजें भूलने के ज्यादा ज्यादा चांसेस हैं, वो सब आप अंडरलाइन कर लोगे. दिस इज हाउ यू कैन प्रायोरिटाइज इन योर ओन नोट्स. आपका नोट्स आपके अपने हो, और अगर आप ऐसे हाईलाइट कर लेंगे तो आई थिंक यू कैन रिवाइज इट वेरी फास्ट. ओके, साक्षी इज आस्किंग विच वन इज अ गुड रिसोर्स फॉर पॉलिटी फ्रॉम बेसिक. साक्षी देखो, इस टाइप के बेसिक सवाल अगर आपको एड्रेस करने हैं ना, मैं प्लीज शेयर योर नंबर इन द चैट बॉक्स. you'll get a free mentorship call. यहाँ पर इतने इतने ओपन एंडेड सवाल हम डिस्कस नहीं कर सकते, एंड दैट वोंट हेल्प यू. Kiran is saying I don't want to share number here. Is there any other way? I request my team, Atul, if you are there, please share our official number here, or share a link जहां से फॉर्म भर के the students can get connected with our mentors. Either link share करो या ऑफिस नंबर शेयर करो. Then Kunal, I'm giving 5 hours every day. SSC, CGL, confident to clear. Can also prepare for UPSC 2024. सरोज, अगेन आप 5 घंटा दे रहे हो, दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, अब
पूछ रहे हो कि आप कर सकते हो क्या सिविल्स के लिए प्रिपेयर 2024 के लिए। अगेन आई डोंट नो वेयर डू यू स्टैंड, निखिल डोंट नो वेयर यू स्टैंड विद रेस्पेक्ट टू योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। बाकी एग्जाम तो ठीक है, आप कॉन्फिडेंट हो। ड्रॉप योर नंबर इन द चैट बॉक्स, माई टीम विल गेट इन टच। डिटेल्ड बात होगी तभी क्लैरिटी आएगी ओपन एंडेड क्वेश्चंस में। शुभम हैज शेयर्ड द नंबर। Trupti is asking, sir, how do we go about CSAT? Trupti, CSAT के ऊपर एक पूरा सेशन हो सकता है। अगेन दिस इज अ वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन, इस पर एक सेशन हम अलग से करेंगे। बट फॉर नाउ निखिल, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग हियर। थिंक आई अग्री विथ यू, सी सैट के ऊपर पूरा सेशन बन सकता है। और लाइक मैंने स्पेसिफिकली आई वुड से कि सी सैट के लिए बहुत ऐसे कोई तैयारी नहीं करी थी स्पेशलाइज वे में। मतलब आई वाज कॉन्फिडेंट सी सैट को लेकर के कि हाँ चलो ठीक है, मेरे नंबर सी सैट में मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाएंगे थोड़ा टाइप्स। तो आई डिड नॉट हैव अ स्पेसिफिक स्ट्रेटजी फॉर सी सैट इन दैट। ओके, हर्ष इज सेइंग थैंक यू सर फॉर द वंडरफुल सेशन। सेशन अभी खत्म नहीं हुआ है वैसे, जो भी क्वेश्चंस हैं आपके विल वी आर टेकिंग दोज। कैन यू शेयर यस्टरडेज रिकॉर्डेड लेक्चर ऑफ रोहित पांडे सर? यस शुभम, कल वाला लेक्चर आपको मिल जाएगा विद इन अ डे और टू। नंबर फॉर फ्री मेंटरशिप कॉल, ठीक है, माय टीम हैज शेयर्ड द ऑफिशियल नंबर, गाइस यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर एज वेल। ऑल्सो यू कैन शेयर योर नंबर्स सो दैट माय टीम कैन गेट इन टच, एंड जो भी आपके ओपन एंडेड डाउट्स हैं वो डिटेल में समझ सकें, एंड यू कैन गेट इट एड्रेस्ड। इज दिस, आयुष इज आस्किंग, इज दिस द राइट टाइम टू मेक नोट्स? ऑब्वियसली आयुष, सी प्रीलिम्स इज राउंड द कॉर्नर, प्रीलिम्स फेज चल रहा है, एंड ऑब्वियसली अगर आप नोट बनाओगे तो प्रीलिम्स के ही बनाओगे, एंड सर्टनली दिस इज द राइट टाइम टू मेक नोट्स। अगर अगर आपने कल मिस्टर रोहित पांडे का सेशन अटेंड किया है, देन यू नो व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर मेकिंग नोट्स फॉर प्रीलिम्स, सो दैट योर नोट्स आर क्वाइट स्ट्रक्चर्ड, कंसाइज। ऐसा नहीं कि आप बस किताबें रजिस्टर्स भरे जा रहे हो नोट्स नोट्स की। अगर नहीं किया है, जस्ट ड्रॉप इन योर नंबर, आई माई टीम विल मेल यू द फ्री पीडीएफ्स फॉर स्कीम्स एंड स्पीसीज वाले नोट्स अमंग द टॉप शॉर्ट शॉर्ट थीम्स दैट वी हैव क्रिएटेड। दो दो थीम के नोट्स आपको मिल जाएंगे, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि नोट्स आप बना रहे हो अभी प्रीलिम्स के लिए तो कैसे बनाने हैं। आयुष, देन सर हाउ विल गेट द रिकॉर्डेड लेक्चर? शुभम, तुमने लेट ज्वाइन किया है क्या? इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा 1 और 2 डेज में। यू हैव रजिस्टर्ड राइट, लेक्चर आपको मिल जाएगा। देन डू वी हैव सम मोर क्वेश्चंस? गाइस इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज ड्रॉप those questions in the chat box. Like we'll give you another 1 minute or so. If there are no questions, this webinar is almost over then. Anybody has any unresolved doubts, unresolved questions, and by the time students are asking a few more questions, those who have joined late, guys, I have already announced that those students, क्योंकि मुझे पिंग किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स टेलीग्राम के ऊपर, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी और personally भी, those students who have already enrolled in some other program, Civils Daily is giving will give you the best discount so that you are not overburdened. That is one thing. Another thing, I've already shared the link to Dominant Prelims 2024 in the chat box. I've shared it again. Just a moment. I'm sharing it again. I've shared the link again for Dominant Prince 2024, where keeping with what Nikhil has said and emphasized, PYQ based preparation करना है बॉस। PYQ को आप इग्नोर कर रहे हो, then you are putting in sincerity, you are putting in efforts, but PYQ analysis के बिना you are lacking that sense of direction। एफर्ट्स है, सिंसियरिटी है, लेकिन सेंस ऑफ डायरेक्शन लैकिंग है। सो पीवाईक्यूज पर एम्फसाइज करना है। पीवाईक्यूज हैव टू बी योर बाइबल। सम ऑफ यू हैव आस्क्ड क्वेश्चंस अगेन। तन्मय, निखिल सर, डिड यू ऑप्ट फॉर एनी कोचिंग, एनी ऑनलाइन कोचिंग with job? Is it advisable to go for coaching or self study along with job?
निखिल। Yes, so initially I had opted for a coaching. जैसा मैंने कि बताया था, I think I used to wake up at 6 to 7 पे मेरी क्लासेस शुरू होती थी. Like I used to wake up at 5 so that 6 तक मैं रेडी हो जाऊँ कोचिंग के लिए चला जाऊँ. देन 6 से 7 में पहुंचता था कोचिंग, 7 to 9 कोचिंग अटेंड करता था. बैंगलोर में लोकल कोचिंग ज्वाइन करी थी, फिर 7 to 9 करने के बाद मैं वहां से वापस पहुंचता था, तो 11 बज जाते थे मुझे ऑफिस आते आते. देन आई यूज्ड टू वर्क टिल 7 8 और फिर वापस आता था. तो सुबह का जो प्रोडक्टिव आवर्स है आई कुड यूटिलाइज दैट. बट गोइंग फॉरवर्ड फिर कोविड आ गया था उसके बाद, तो आई हैड स्टार्टेड वर्किंग और ऑनलाइन कोचिंग कर रहा था. तो उस समय मैंने फिर ऐसे बायजूस से कोर्स लिया था, बट आई डिड नॉट फाइंड दैट वेरी हेल्पफुल. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि यार इस एग्जाम में ना सेल्फ स्टडी मैटर्स द मोस्ट. सो सेल्फ स्टडी के बिना ये एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल है. आपको खुद से टाइम देना पड़ेगा, खुद को मतलब खुद से वो टाइम स्पेंड करना पड़ेगा चीज़ों को समझने के लिए. एंड द की टू क्लियर दिस एग्जाम इज सेल्फ स्टडी. तो वो आप कितनी भी मतलब आप कोचिंग लो ठीक है, लेकिन आपको इवेंचुअली कोचिंग के साथ सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा. एंड सिंस आप वर्क कर रहे हो, जैसे मैं वर्क करता था, तो मेरे लिए ऐसा है कि इफ आई डोंट हैव द कोचिंग आई डोंट हैव अ डायरेक्शन. मतलब मेरे को इतना टाइम नहीं है कि मैं सब कुछ खुद से पढ़ के खुद से सारे नोट समझूं, सारी चीजें समझूं, सारे कॉन्सेप्ट समझूं. तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लाने में कोचिंग ने मेरी हेल्प करी थी. एंड वो अंडरस्टैंडिंग आने के बाद फिर आपकी सेल्फ स्टडी पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे रिवाइज करते हो, कैसे उससे आप नोट्स बनाते हो, और कैसे उन नोट्स को रिवाइज करते हो, कैसे पीवाईक्यूज को यूज करते हो. तो ऑल दीज थिंग्स मेंटरशिप में कोचिंग हेल्प करती है. एंड एज अ पर्सन डूइंग अ जॉब आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लाइक सेव टाइम. सो आप जितना टाइम बचा पाओ वहां पर कोचिंग आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं हेल्प करेगी. बट सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी. सेल्फ स्टडी के बिना एनी कोचिंग, नो कोचिंग कैन हेल्प यू विदाउट सेल्फ स्टडी. यस, वेरी वेरी वेल सेड। और जिस तरीके से निखिल ने बताया कि सेल्फ स्टडी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, बट देर इज रेलेवेंस ऑफ मेंटोर इन योर लाइफ। मैंने मेरे पिछले सेशन में ये एम्फोसाइज किया था, अद्वैत अद्वैतवाद हम सब पढ़ते हैं, हम सब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं। सो अद्वैतवाद क्या बोलता है हमको? इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स अ फेज ऑफ योर लाइफ। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल नीड द हेल्प ऑफ अ गुरु, यू विल नीड द हेल्प ऑफ अ मेंटोर। लेकिन उसके बाद भी एक फेज ऐसा आता है आपके लाइफ में जब आपको गुरु की भी जरूरत नहीं होती, मेंटोर की जरूरत नहीं होती। जब आपको समझ में आता है अहम ब्रह्मास्मि जो है मेरे अंदर है, द वर्ल्ड इज इनसाइड मी, बट दैट इज आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, राइट? ओके। शुभम इज सेइंग इसका नहीं सर, रोहित पांडे सर वाला, इसका लिंक, इसका आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा शुभम, यू हैव रजिस्टर्ड राइट, यू विल गेट इट। आई थिंक दैट विल गो ऑन यूट्यूब, यूट्यूब पर मिल जाएगा टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। Harsh is asking, sir, while making notes, we should include current affairs facts regarding that topic on those notes or make separate notes for current affairs. हर्ष देखो, रोहित सर ने ये काफी डिटेल में कल ही डिस्कस कर लिया है। इसका आपको यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। लेकिन अगर नोट मेकिंग के बारे में आपको डाउट्स डिटेल में क्लियर करवाना है, वन टू वन बात करना है, ड्रॉप योर नंबर इन द चैट बॉक्स, माई टीम विल गेट इन टच विथ यू। Again, I have shared the link for Dominate Prelims 2024. Sonu is asking balanced level, all subjects study. What's refer higher time or not with subject? काफी वेग लग रहा है सोनू क्वेश्चन, इसको अच्छे से फ्रेम कर सकते हो? अश्विनी सर, कोचिंग एसेंशियल है क्या यूपीएससी क्लियर करने के लिए? अभी निखिल ने भी वही कहा और मैंने भी अद्वैतवादा की बात की। अहम ब्रह्मास्मि एक लेवल के बाद आएगा, ठीक है, अभी अभी वो स्टेज नहीं है। किस सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम दे सोनू, दीज आर वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। निखिल को और मुझे नहीं पता कि व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग एरियाज। सम स्टूडेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग एरियाज इन पॉलिटी, किसी को पॉलिटी आसान लगता है, किसी को इकोनॉमी आसान लगता है, किसी को पेपर सॉल्विंग में डिफिकल्टी आती है। मतलब पढ़ तो सब लेते हैं लेकिन जब पेपर सॉल्व करते हैं तब काफी गलती करती है। ड्रॉप योर नंबर सोनू, विल ट्राई टू एड्रेस इट वन ऑन वन। आर देर एनी मोर क्वेश्चंस? लास्ट 30 सेकेंड्स, ठीक है, एक क्वेश्चन और आया है। Hi Nikhil sir, what was your answer writing strategy? When did you start mains test series? What was it after completing major portion of syllabus or was it parallel along with preparation? Tanmay, although this is not a mains specific session, still I would ask Nikhil to briefly address your question. सो फॉर मेंस आई हैड मोस्टली यूटिलाइज द टाइम बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस. तो मेरे पास मतलब हमेशा मेरा प्रिपरेशन थोड़ा साइन वेव में चलता था कि कुछ टाइम कुछ नहीं चल रहा है बिकॉज ऑफ जॉब. फिर उसके बाद जैसे एग्जाम आने लगते थे तो प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती थी फुल फ्लेजेडली. क्या प्रीलिम्स आ रहा है, पढ़ना है, वापस पढ़ना पड़ेगा, फिर मेंस आया तो पढ़ना है. तो आई वुडेंट एडवाइस कि हाँ वैसा ही करना चाहिए. प्रीलिम्स से पहले अगर आप जैसे अभी तक के टाइम में इफ यू हैव गिवन अ मेंस टेस्ट या फ्यू मेंस टेस्ट देन इट इज वेरी गुड. नहीं किया है तो आप प्रीलिम्स पे फोकस करो.
फेब्रवरी आ गया है, सो इट्स बेटर टू फोकस ऑन प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद तो वो जो एनर्जी आती है 3 महीने में, उसमें आप मेंस के लिए पूरा फुल फ्लेजेडली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, टेस्ट सीरीज दे देना। So I had also given my utilized my time in between prelims and mains to write all the mains test series that I had written. वैसे पहले और बाद में मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं लिखी थी मेंस के। सो दैट इज विल बी माई स्ट्रेटेजी कि उसी टाइम को मैंने जितना यूटिलाइज किया, जितने टेस्ट लिख पाओ उसी टाइम में। एंड वो कभी आपके पास, जैसे आपका जो क्वेश्चन था कि स्ट्रैटेजी जो है वो क्या होनी चाहिए, या पूरा नोट्स बनाने के बाद पढ़े या सेक्शन खत्म होने के बाद पढ़े, तो भाई कितना भी पढ़ लो, you'll never get that confidence of writing means answer until unless you start writing। तो वो लिखने से ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जितना आप लिखोगे आपको उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। देयर इज नो परफेक्ट आंसर। आप पूरा टॉपिक पढ़ लो, आप मॉडर्न हिस्ट्री का एक चैप्टर पूरा पढ़ लो, उसी चैप्टर से मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन दूंगा, आप 200 वर्ड्स में उसके आंसर लिखोगे। उसके बाद भी ऐसे पॉइंट्स रहेंगे जिसमें ऐड किए जा सकते हैं या उसमें कुछ और इंप्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं, तो आप एकदम तुरंत पढ़ के भी परफेक्ट आंसर नहीं लिख पाओगे। तो इट्स ओके इफ यू हैव लिटिल बिट ऑफ नॉलेज, यू कैन स्टार्ट राइटिंग। ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीट होगा तभी लिखूंगा या पूरा खत्म हो जाएगा तभी। तो द मोमेंट यू स्टार्ट राइटिंग इज व्हेन यू लर्न राइटिंग। तो वो आप लिख के ही, और मतलब वो बोलते हैं ना, यू ओनली लर्न बाय डूइंग इन दिस केस। तो वो वाला चीज है कि आप पढ़ पढ़ के ही सीख नहीं जाओगे कि आंसर कैसा लिखना है, आपको लिख के ही समझ में आएगा कि कैसा लिखना है। फाइन फाइन गाइस, आई थिंक क्वेश्चंस एग्जॉस्ट हो चुके हैं। एट द एंड आई एम ऑल्सो शेयरिंग द लिंक टू माई टेलीग्राम ग्रुप। गाइस, यू कैन stay connected with me. You can ping me in the group or you can DM me uh, if you have any doubt with respect to your prelims preparation, especially prelims preparation 2024. I've shared the joining link for my Telegram group. You can join using that link. And yes, the questions have been exhausted. We have addressed each and every question. So I think we can end it here. So for me, yeah, for me, it was quite an enjoyable session, Nikhil, because all of your learnings were in keeping with what I teach to my students as part of my program. और मेरे कई सारे YouTube videos भी इसी इन्हीं lines पर हैं. Probably you might have seen, अगर देखा हो तो. So also the students found it quite insightful. Just to end the session and to remind the students, link for Dominant Prelims 2024 and at the end, link to my Telegram group have been shared in the chat box. Many of you have shared your number. You'll get a call back from my team. So, Nikhil, thanks for joining in. It was an insightful and enjoyable session. Thank you, sir. Even I got a lot to learn from you in the session. It was kind of a revalidation or reinforcement of my strategy, my own strategy, that okay, you have also been asking to do the same thing, but I have learned for a period of time. So it took a lot of time to learn these things, which I think the students are learning firsthand from you, which is a very good thing. So thank you Sure, once sure, sure, Nikhil. Sure. Fine, fine. Also, thanks a lot to the students for sticking in for so long. 1.5 घंटा हो गया है, लेकिन अब तक काफी सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं. Fine, guys, fine. So we can end it here. Thanks everyone for joining in. Good night.